गुड इवनिंग एवरीवन। संडे की अच्छी शाम को सबको प्रेजेंट किया है आपने। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन बिग नंबर्स। ऑलरेडी गूगल मीट पे अपने साथ ऑलमोस्ट 18 to 19 members have joined. This time we have specially kept that facility because a lot of members were out station और permanently भी बाहर जो abroad भी है वो लोग भी अभी join किए हैं उन्होंने। We start within 5 minutes. Garaji, I will request जूस वगैरह चालू करवा दीजिए एंड दरवाजे बंद कर दीजिए। नहीं ते दिसले पाहिजे। हेलो आणि टर्न कर Are they visible? Can you hear us? Dr. Sushil? Hello, Hi. Okay, you can hear us, right? So we can start now. your voice is very, very faint. There is this video call is the volume is extremely small. Okay. So everybody needs to be on mute. Everybody needs to be on mute. I will agree with you. Everybody needs to be on mute. Can you hear? Can everybody hear properly? Yes, yes. No, sir. I cannot hear properly. It is very, very faint and distant. Okay. भले आवन। I will request जो पीछे बैठे हैं ना वो एटलीस्ट एक दो रो आगे आ जावे so that ये जगह पूरा लेफ्ट में खाली पड़ा है यहाँ पे। वीडियो बंद कर। वडेल जी उनको म्यूट पे जाने को बोलिए ना वडेल जी को। अपने मेंबर्स में से कितना अटेंडेंस है आज? अटेंडेंस लिया है क्या? About we can see about 70 people around here. All 70 are members or their relatives? Both we are with kids and mother and son. Members may be less, but flat wise या unit wise they will be much more because lot of people are holding 2 units, 3 units. I see. But we need every vote. No, there are 143 total. How many? 143, na? Total we have 149. 149. Yes. And including the bank, it is 151. Okay. So we start the meeting now. We start with the first agenda. In view of the consent received from more than 2/3 members in favor of redevelopment of our society, we intend to call special general body meeting to discuss and decide progress made in the redevelopment scheme of the society from last SGM 24th December 23. So आगे जो करो क्या 5-6 महीने Hello. As everybody has discussed and suggested, we have been meeting a lot of people regarding this development for this SGM especially. We met around 6 to 7 PMC and out of them we have got 3 quotes जिनका अपने को थोड़ा अच्छा लगा था। उसके ऊपर अभी हमारा जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट था कि भाई वी हैव टू फर्स्ट फाइनलाइज द पीएमसी। एक बार पीएमसी फाइनल होने के बाद ही विल गिव अस, अपने पास वर्किंग है
कच्चे नंबर्स हैं जो लास्ट पीएमसी रिपोर्ट अपन ने लिए हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्किंग जो डिटेल्ड वर्किंग चाहिए वो वंस वी फाइनलाइज एनी एजेंसी वी विल बी गेटिंग दोज नंबर्स. I'll just add one line before kicking the slides. So the basic thought process of the redevelopment committee and everyone here is to get reputed PMC वाले reputed builder, क्योंकि 4 लाख फुट का बड़ा प्रोजेक्ट है तो कोई जगह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. जो भी करना है रेप्यूटेड ब्रांडेड लोग लेकर काम करना है. तो लीगल लॉयर फॉर्म हो या पीएमसी हो या डेवलपर, वो बिग पिक्चर से हम लोग सब यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग कर रहे हैं. तो केतन के कंटिन्यू. So जो अभी across all we received, we have gone through that. Sorry, हमने जो अभी तक पीएमसी से मिले उसमें से जो सबसे ऑथेंटिकेटेड, नॉलेजेबल, कॉन्टेक्ट वाइज स्ट्रॉन्ग, खुद का इन हाउस पूरा टीम जो हमको लगा है वो आज हम लोग आपको प्रेजेंट करेंगे. उनका इनिशियल जो कोट आया है हमको, which starts from making the feasibility report, final feasibility report, and up to finalization of the developer. There are around 5 to 6 phases in that, which comes to approximately उनके हिसाब से जो उनका बजट नेगोशिएशन के बाद जो आया है वो 25 lakhs आया है. और जो बाकी के भी अपने पास मीडियम साइज या स्मॉल मीडियम साइज के जो पीएमसीज है उनका कोट करीबन 15 लाख से 20 लाख ये स्टेज तक का आया है. ओवरऑल जो स्टार्ट टू एंड पूरा काम संभालेंगे, या तो इनको अपन कंटिन्यू करेंगे या फिर दूसरा कोई रखेंगे, तो रफली इट इज बिटवीन 30 to 40 रुपीज पर स्क्वायर फीट अपने को कॉस्ट आ रहा है पीएमसी का. अभी बहुत सारी सोसाइटीज में केसेस में ऐसा होता है कि छोटी सोसाइटीज में कि भाई पीएमसी का कॉस्ट अपन क्यों बेयर करें, अपन तो बिल्डर पे डाल देंगे. बिल्डर पे बहुत आराम से अपन डाल सकते हैं, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है इसमें कि अगर बिल्डर पैसा देता है, पीएमसी अगर बिल्डर का नमक खाता है तो कहीं ना कहीं वो उसका ही फेवर करेगा. वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं करेगा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके कहीं भी अलग रीत से कहीं ना कहीं उनका फेवर होगा, जो हम लोग नहीं चाहते थे. उस हिसाब से हमने बहुत इस पे मतलब मेहनत करके रिसर्च करके फिर जो अपने को अच्छे लगे उनसे अपन आगे अभी बढ़ने को सोच रहे हैं. तो प्राइमरी अपना जो आज मुद्दा है अपना एसजीएम का वो यही है कि भाई सबसे पहले अपने को जो पीएमसी अपॉइंट करना है उसका जो बजट करना है वो अपन एक फाइनल करें. उसके साथ लॉ फर्म के साथ भी करीबन 3 या 4 लॉ फर्म से मीटिंग हुई है, लेकिन अभी तक उसमें हमारे को कोई एकदम प्रॉपर नहीं लगा है. और अभी तक 2 जन के कोटेशन आए हैं, बाकी के 2 कोटेशन भी नहीं आए हैं. तो उसमें और भी शायद हम लोग को 2-3 जन के साथ मीटिंग करने के बाद देन वी विल अपॉइंट सम लॉ फर्म which will again यहाँ से लेके हमको लास्ट तक लेके जाए. थर्ड, we require one chartered accountant firm also. Many firms are there which are chartered accountant कम law firm है. जो लोग ये बहुत सारा जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं वहाँ पे मोस्टली ये ड्यूअल काम उनका रहता है, because there are lot of taxation issues nowadays in redevelopment. आप पढ़ते होंगे रेगुलर पेपर वगैरह में भी कि भाई जीएसटी का क्या होगा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया. ये बाद में अचानक गवर्नमेंट की सडनली डे 1 पे नोटिस आती है कि भाई अब यार आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा, ये वो. सो अपने को टैक्सेशन पार्ट भी डे 1 से जब भी अपन डेवलपर के साथ आगे बढ़ेंगे उसके पहले सबके माइंड क्लियर होने चाहिए कि भाई अपने को ये पैसा लगने वाला है या नहीं लगने वाला. तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो स्पेशली रियलिटी के साथ कनेक्टेड हुए, जो इस पे स्पेशलाइज करते होंगे, उसमें से कोई ना कोई फर्म अपन करेंगे. उसके लिए भी 1-2 मीटिंग हुई है, अभी प्राइमरी मीटिंग्स हुई है, तो शायद वो भी एक अपने को करनी चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है, हमारा कमेटी का सजेशन है. आप सबका अगर विचार जो भी होता होगा उस पर अपन बात करेंगे. और प्राइमरी जो अभी तक अपन ने जो भी काम किया है उसके रिलेटेड अपन पहले किसी के भी कोई क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो लेते हैं, उसके बाद अपन वापस आगे बढ़ते हैं. तो निखिल भाई, आप कुछ तभी क्वेश्चन आपने मेरे को शायद पूछा था ग्रुप पे या कहाँ पे. हाँ माइक, ए गारे माइक दे ना. खाली माइक है खालच्या ये दे देना. हे दे दो ना. वो 3 था एक्चुअली, मुझे ते आपण अजून एक घेऊन ये. तिसरा वो कॉर्डेड माइक नाही आहे. एक जण इकडे उभं राहा ना. हां, इकडेच उभा राहा. आणि ते माइक तिसरा कुठे आहे?
क्वेश्चन तो मैंने पूछा था फॉर सोसाइटी मैनेजमेंट ऑफिशियल ईमेल आईडी जो रहेगा कि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे अगर हमारे पॉइंट्स एज रिगार्ड्स एज अ मेंबर्स आर कंसर्न फ्रॉम द सोसाइटी। तो ईमेल आईडी नहीं था तो मैंने पूछा था बिकॉज़ वी हैड सर्टेन क्वेश्चंस एंड फादर को भी देना था कुछ कमेंट्स। अपना ईमेल आईडी है ना, व्हाट्सएप पर अभी ग्रुप पे डाल देते हैं। एंड सेकेंडली जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि द एजीएम ऑफ 24/12/23 हाँ। एंड 2/3 मेंबर्स के जो लिस्ट है दैट वी वांटेड टू सी कि अगर वो पॉसिबल है जो कंसेंट है और जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ दिसंबर 23 आई डोंट थिंक सो हमें वो मिला है। नहीं, वो एजीएम नहीं था या नहीं, एसडीएम था बट मतलब एसडीएम था, अपन ने रीडेवलपमेंट के रिलेटेड जस्ट मतलब जैसा आज का मीटिंग है, इट इज नॉट रिलेटेड टू 79A का प्रोसेस। पिताजी ने पूछा भी था कि भाई ये 15 दिन का होना चाहिए। सी नॉर्मल अगर वो 79A में जाएंगे तो 15 दिन वाला ही करके जाएंगे अपन, और ये नॉर्मल जो एसडीएम रहता है उसको 5 डेज का नोटिस लगता है। इसलिए तो 14 डेज। हाँ, तो इसके लिए अपन 14 डेज, और क्या है देखो, ये सब करने के लिए ही हमको प्रॉपर टीम को डिप्लॉय करना है जो एवरी प्रोसेस फ्रॉम डे वन फॉलो करे। क्योंकि क्या होता है, सर्टन चीज हम लोग एकदम डे टू डे तो फॉलो नहीं कर सकते हैं, काफी चीज का नॉलेज, क्योंकि लॉज काफी कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। तो वी नीड समबडी हु इज डे टू डे टच विद द गवर्नमेंट, या जो भी गाइडलाइंस आती है उसके हिसाब से अपने को आगे लेके जाना है। वो तो सही है कि अगर हम जा रहे हैं रीडेवलपमेंट, ऑफ कोर्स इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए वी नीड अ वेरी वेरी थॉरो प्रोफेशनल मैनेजमेंट दिस कंसल्टेंट जो बोल रहे पीएमसी, हाँ, जिसमें लॉयर सी आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स होंगे या Yes. द प्रोफेशनल बॉडी We need. बट कंसर्न है कि एक वी शुड फॉलो द प्रॉपर प्रोसेस फॉर डूइंग दिस। एब्सोल्युटली। जैसे एजीएम है तो लेट बी ओनली एजीएम विद बोनाफाइड मेंबर्स ओनली एंड और मिनट्स ऑफ द मीटिंग बी सर्कुलेटेड आल्सो इन द प्रॉपर ड्यूरेशन टाइम। श्योर, प्रोसेस फॉलो होना जरूरी है एज वेल एज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ कंसेंट ऑफ 2/3 मेंबर्स है नहीं है। अप्रिशिएट वो मिलेगा। इवन जो पीएमसी है उसके बारे में भी डिटेल्स, जैसे मैंने पूछा था कि इफ देयर इज सम प्रिलिमिनरी वर्क डन, जैसे पीएमसी अगर हमने 3 किए हैं तो उनके भी डिटेल्स अगर सर्कुलेट करेंगे अमंगस्ट मेंबर्स तो वी कैन गो थ्रू, एंड इफ हमारी तरफ से कुछ प्रपोजल होगा फॉर पीएमसी वी कैन पुट थ्रू इट। श्योर Doctor, आपके questions are absolutely valid, all genuine. Now you mentioned two things: transparency and rules. Actually speaking, both don't go hand in hand. दोनों चीज साथ में नहीं। जैसे कि आज हिरेन के साथ उसका समय, वो भी समझेगा सीखेगा, उसको भी रहना है कि आप हो तो आप दोनों साथ में क्यों आए, क्योंकि हम लोग थोड़े फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंसी है इसीलिए फ्लेक्सिबल है। अप्रिशिएट आपने साथ में आज आप यू नो एसोसिएट मेंबर्स थोड़ा है ना, थोड़ा रूल्स और लकीर के फकीर हम बनेंगे ना तो थोड़ा ये सब नहीं कर सकेंगे। we are trying to do for transparency, ये सब चीज थोड़ा सा काफी मेंबर्स को डाउट्स है, काफी मेंबर्स को फियर भी है अमंग यंगस्टर आल्सो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे हम लोग डिस्कस करके फ्रॉम आवर यंगस्टर साइड आल्सो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आर वी केपेबल इनफ ऑफ हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। अगेन यूथ क्लब पूरा दिख रहा है, भवानी यूथ क्लब बैठा हुआ है उधर साथ में सब। इसीलिए जो पहले जो हमने स्टेटमेंट दी ना, व्हेन यू हैव द बेस्ट टीम कंसल्टेंट, बेस्ट लॉयर्स, बेस्ट आर्किटेक्ट, बेस्ट पीएमसी रखोगे, कोई भी कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं करेंगे। 4 लाख फुट का कंस्ट्रक्शन है तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो रिस्क होगा, कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू टेक केयर। और उसके लिए वी व्हाट हमारे माइंड में जो थॉट्स है, जो पीएमसी से मिलने के टाइम पे भी हमने काफी लोगों से डिस्कस किया। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में भी ऐसा था कि कोई बड़ी ब्रांड आती है तो दे विल ट्राई टू स्क्वीज अस, मतलब वो शायद दूसरा अगर एक्स अमाउंट देता है तो ये वाई अमाउंट अपने को ऑफर करेगा, एक्स नहीं देगा। लेकिन जब भी जो पीएमसी अभी हमको अच्छा लगा है, उनसे मीटिंग करने पे ये पॉइंट पे डिस्कशन हुआ। लकीली रीडेवलपमेंट टीम में से भी 2-3 जन हाजिर थे, हर्षद भाई भी थे, एंड ही ओनली पॉइंटेड आउट दिस क्वेश्चन। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो हम लोग को भी क्लियरिटी नहीं था कि आपको ऐसा लगता है, लेकिन आज का जो दौर है इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो अगर 2 बड़े बड़े बिल्डर आते हैं या 3 आते हैं, सो यू विल गेट द बेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ दैट, बिकॉज सी देयर इज अ कंपटीशन। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्डर अगर कार्टेल बना लेगा कि भाई 100 वो देता है तो मैं 95 ऑफर करूं, बिकॉज वो लेवल पे ये लोग ये सब काम नहीं कर सकते। और लकीली आजकल जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, मोस्ट ऑफ आर अच्छी कंपनियां, तो ऑल ऑफ देम आर गेटिंग लिस्टेड। तो वी आर ट्राइंग प्रेफरेबली अपन उनमें से ही कोई ब्रांड को लेवे जो, क्योंकि वंस इट इज लिस्टेड तो उसका पूरा कुंडली आपको ऑनलाइन मिल सकता है, सेबी के उस पे भी, वेबसाइट पे, कंपनी के वेबसाइट पे। तो काफी चीजें अपन जिसकी भी जो मतलब क्वेश्चन रहता है नॉर्मली, या फाइनेंशियल्स देखने हैं उनके,
अपने में काफी चार्टर्ड अकाउंट्स है अपनी बिल्डिंग में लकीली, तो दे कैन गो थ्रू, दे कैन मतलब ऑटोमेटिकली आपको फंडिंग का बैकअप वगैरह जो है उनके रनिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में सब कुछ मिल सकता है, कंपलसरी है उनके लिए। तो सो पब्लिक लिमिटेड होने से पूरा डेटा अवेलेबल है डोमेन पे उनके, जो पब्लिक डेटा है। इसी वजह से पीएमसी के लिए भी हमने जो मतलब ये इनिशियल थॉट्स थे सब करते 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 फिर फाइनली हमको ऐसा लगा कि भाई अपन अगर हर चीज एक एक छोटा, इनिशियली हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि एक लेवल आने के बाद अपना कंसेंसस होने के बाद पीएमसी को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन बाद में लगा कि भाई देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी डोंट नो, वी शुड नॉट गेट इनटू दैट। अगर अपन फीस दे ही रहे हैं तो इट इज बेटर अपन डे वन से ही उसको देवे ना, सो दैट प्रॉपरली वो जो भी रूल्स रेगुलेशन है 79 के पूरा चैप्टर है। अनफॉर्चुनेटली आज वडेर जी प्रेजेंट नहीं रह पाए, उन्होंने मतलब 3 मीटिंग हमने लास्ट वीक में की, पर उनको अर्जेंटली जाना था पारगाम, ही वाज सपोज टू बी बैक टुनाइट मतलब बिफोर 6:30, बट उनके फैमिली में एक डेथ हो गई, सो अगेन फ्रॉम देयर ही हैड टू ट्रैवल समवेयर एल्स। सो फिर लकीली आज ये गूगल ने बचा लिया है, तो कम से कम अपने को लोग देख रहे हैं इस पे। तो डॉक्टर जो आपने बताया कंसर्न के लिए जो पीएमसी जो आर्किटेक्ट जो रहेगा, टेंडर डॉक्यूमेंट ऐसा वाटर टाइट बनेगा जिसमें नेटवर्क क्राइटेरिया, पास ट्रैक रिकॉर्ड, कितने टावर बने, सबका पूरा बैलेंस शीट, नेटवर्क सब इतना वाटर टाइट होगा कि कोई छोटा बिल्डर आके घुस के परेशान नहीं करे अपने, उसके लिए सब ध्यान रख के वाटर टाइट करना पड़ेगा। दूसरा, वी आर ब्लेस्ड इन आवर बिल्डिंग फॉर एवरीथिंग, लाइक आर्किटेक्ट आज अपने को अमरेजी की ऑफिस का पूरा सपोर्ट है, you know, for legal we have Vadirji's support and we are blessed with all of them. CA तो दिलीप भाई, प्रवीण भाई, हिरेन भाई सब कुछ है। बिल्डर MB अग्रवाल साहब को भी हम परेशान करते रहते हैं हमेशा जब भी हमको जरूरत पड़ती है। आज रियल एस्टेट में भी है तो हम लोग, विकास भाई किलर इंजीनियर्स की ऑफिस है, पिंटू बैठा हुआ है इधर, सब लोग हैं, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी तभी सबको कॉन्टेक्ट अमरेजी। तो ये सब का भी सपोर्ट, हम जब भी काम पड़ता है वी गो एंड वी रीच आउट टू एवरीवन नोज वी रीच आउट टू देम एंड एवरीवन विदाउट, इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ कलेक्टिव टीम वर्क, कोई एक जन से कोई एक टीम से ऐसे नहीं होने वाला। हेलो, कमिंग बैक टू जो क्वेश्चन था यूथ जिनका कि आर वी केपेबल ऑफ डूइंग सच प्रोजेक्ट या ये कैपेसिटी का प्रोजेक्ट। सी पहली बात तो अपन सब एक साइड ऑफ द बॉल है, कोर्ट है, अपने को सबको मिलके ये करना है, कोई एक बंदे का या 4 बंदे का ये काम नहीं है। सो फर्स्ट अपन अगर यूनाइट नहीं होएंगे तो ये काम कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, 5-10% लोग का कुछ पर्सनल इश्यूज रहता है, बहुत बार ग्रीवेंसेस रहता है, कोई जेन्युइन इश्यूज भी रहते हैं, उनको कैसे कैटर करना वो अपनी जवाबदारी है। सो बिफोर गोइंग एट वी शुड मेक देम सेटिस्फाइड सो दैट उनको कंफर्ट लेवल आना जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ सीनियर्स का ये प्रॉब्लम रहता है। लास्ट टाइम भी अपनी ये पॉइंट पे डिस्कशन हुआ था कि सीनियर्स बोल रहे हैं कि भाई अभी नहीं करो, 5 साल के बाद करो, 10 साल के बाद करो। तो तभी भी मैंने यही बताया था कि सर आज आप 70 इयर्स के हो फॉर एग्जांपल, तो एजिंग तो कभी रुकने वाला नहीं है। जो 65 वाला आज है वो कल 70 हो जाएगा, परसों जो 60 मतलब 60 वाला है वो 65 पे आ जाएगा। तो ये एजिंग का तो प्रोसेस है, तो उसके लिए कॉमन जो भी एजेंडा है, और जो यंग जनरेशन है अभी आपन ने देखा है अनफॉर्चुनेटली काफी लोग माइग्रेट हुए। व्हाट वाज द रीजन? यंगस्टर्स तो स्पेशली मैं बोलूं यही था कि भाई बिल्डिंग अभी ये काफी जूनी हो गई, फैसिलिटीज नहीं है, एमिनिटीज नहीं है, दैट्स व्हाई पीपल आर माइग्रेटिंग। अगर यही चीज अगर प्रॉपर टाइम पे बन जाती है तो डेफिनेटली पीपल वुड लव टू कम बैक आल्सो, जिनका कंटिन्यूएशन है फ्लैट्स में। जो नहीं है लेकिन जो कनेक्टेड लोग हैं दे कैन आल्सो कम, बट दे हैव टू बाय। तो खरीद के आना एक अलग बात रहती है, और जो ऑलरेडी यहाँ पे है भाड़े पे दे चुके हैं, दे हैव मूव्ड, दे ऑलवेज हैव दैट बेनिफिट कि भाई चलो ये कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन पार्ट में अपन प्रॉपर टीम के साथ अगर एग्जीक्यूट करें तो सर ये अप्रॉक्सीमेटली जो प्रोजेक्ट है वो करीबन 800 से 900 करोड़ का प्रोजेक्ट हो रहा है, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल। लास्ट टाइम भी अपने बैंक से भी मैडम आए थे, उन्होंने बोला कि भाई 100-200 करोड़ तक का तो लोन हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तभी अपन सेल्फ डिलीवरी के बाद में सोच रहे थे। लकीली जो 33(9) का स्कीम है उसमें सबसे बड़ा जो चेंज आया, पहले अपन भी थोड़ा थोड़ा सोच रहे थे सेल्फ डिलीवरी लेंगे तो अपने को ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन जवाबदारी बहुत ज़्यादा थी उसमें। तो 33(9) में वो चीज़ अपना क्लियर हो गया कि भाई आइदर यू गो फॉर सेल्फ और यू गो विथ सम डेवलपर, द FSI एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। तो फिर अपन बोले कि भाई अगर वो सेम ही है तो व्हाई वी विल इवन थिंक फॉर गोइंग फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट। जो डेवलपर है उसको ही अपन चूज करके जावे आगे। और
अभी जो लेटेस्ट कंपैरिजन चार्ट आया है उसमें उन्होंने जो वर्किंग दिया है जो पीएमसी ने, उसमें जो बेस्ट वर्किंग 33.9 में बैठ रहा है, 33.11 भी ट्राई कर लिया, 33.7 भी ट्राई कर लिया, 4-5 स्कीम का उन्होंने कोशिश किया, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट और विदाउट हर्डल वाला स्कीम है 33.9। उसका बेसिक क्राइटेरिया ये है कि यू शुड बी ओवर एंड अबव 4000 स्क्वायर मीटर। लकीली वी आर एट 7600 स्क्वायर मीटर, तो वो बहुत क्लियर है। सॉरी 6700 उल्टा है। तो वहाँ पे अपन बहुत क्लियर है कि भाई अपने को वो कोई पहले इनिशियली ऐसा था, हम लोग सोच रहे थे कि भाई शायद 2-3 बंगले वाले या आसपास में जो है जो से स्ट्रक्चर है उनको ज्वाइन करेंगे तो ही वो बेनिफिट मिलेगा। बट अभी ये 33.9 में वो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, सिंपल क्राइटेरिया 4000 प्लस है, यू आर एलिजिबल। सो उसके बेस पे जो वर्किंग आया, कोई भी डेवलपर अपने को बिटवीन 50 to 60% एक्स्ट्रा एरिया देता है, उसके बावजूद भी आराम से उसको पूरे प्रोजेक्ट पे अप्रॉक्सीमेटली 25% का तो मार्जिन बहुत कंफर्टेबली मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट। प्लस ये बेसिक वर्किंग है, अभी तो डिटेल्ड वर्किंग होगा जब भी डेवलपर से मीटिंग होगी, दैट टाइम वी विल गेट द एक्चुअल नंबर्स। इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट प्राइमा फेसिया जो दिख रहा है वो इतना तो इजीली मिलेगा ही। अच्छा, इससे अगर कम मिलता है 30% या ऐसा कुछ खाली फंजिबल एफएसआई मिलता है छोटे प्रोजेक्ट के लिए, वो ठीक रहता है, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट में वो 30% के लिए कोई भी, मतलब इवन मैं भी नहीं सपोर्ट करूंगा यार, छोड़ना 30% के लिए कौन मगजमारी करेगा। तो पहले जो अनफॉर्चुनेटली 1-2 रिपोर्ट आए थे उसमें वैसा ही था कि वो 35-30% ही देंगे। सो वी वर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट, एंड ठीक है अपन भी बहुत ध्यान नहीं दे रहे थे। लकीली जो 33.9 का जब भी वर्किंग शुरू हुआ और जो रिपोर्ट्स आए उसमें फिर हमको काफ़ी पॉजिटिव दिखा, इसके लिए फिर हमने वापस ये रीइनिशिएट किया, और जो वर्किंग लास्ट आई उसमें ये उन्होंने सब अलग अलग करके दिया कि भाई ये इतना करेंगे तो इतना मिल सकता है, इतना करेंगे। जो बेस्ट रिपोर्ट है उनका वो बिटवीन 50 to 60% वाला विद 25% है। तो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग, मैं एक एग्जांपल देता हूँ रॉ, हाँ, क्योंकि अभी क्या है, हर एफएसआई आपका जो प्लॉट है उसकी रोड विथ पे हिसाब से ही आपको एफएसआई मिलती है। अगर रोड आपका छोटा होता तो आपके पास कितनी भी एफएसआई हो, you will not be able to consume because there is a restriction on the height. तो लकीली अपने को रोड भी प्रॉपर मिल रहा है, अपने को जगह भी प्रॉपर है, अपना प्लॉट भी प्रॉपर है, तो वो सब में अपन काफी अच्छी तरह बैठ रहे हैं। दूसरी एक बात बताऊं, अपना जो प्लॉट है एज अ बिल्डर की जैसे मैं बोलूं तो दिस इज अ गोल्डन एग, बिकॉज इट इज इन द सेंटर ऑफ दादर वेस्ट। दादर जो एरिया है, सी एक टाइम पे दिस वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट एरियाज। मेरे सीनियर्स को ज़्यादा मालूम होगा, हमारे लिए भी तभी मतलब दादर मतलब बहुत ऐसा कि भाई दादर में सब चीज़ मिलती है, बड़े बड़े दुकान है बड़े। अभी चलो सबअर्बन बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ तो वो कंसेप्ट थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं साउथ बॉम्बे में इतना डेंस पॉपुलेटेड एरिया में इतना बड़ा प्लॉट मिलना और विदाउट एनी टाइटल हिंडरेंस, कोई झंझट नहीं, दूसरा कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, एकदम क्लीन नीट प्लॉट, वो बिल्डर के लिए इस टाइप का आज की तारीख में मिलना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है उनके लिए। सिमिलरली अपने लिए भी अच्छा है, क्योंकि अभी माटुंगा में भी हम लोग देख रहे हैं एवरेज माटुंगा का जो छोटा छोटा इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है वहां पे करीबन 45 to 50,000 का रेट है। लेकिन गोदरेज ने अग्रवाल नगर करके जो प्रॉपर्टी थी माटुंगा में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जब भी लिया उन्होंने शुरू में 65,000 का रेट लॉन्च किया, तो पीपल बोल रहे थे अरे कौन बुक करेगा कौन बुक करेगा, बट आज ऐसा हो गया कि वो फटाफट बुक हो रहा है। और उसके बराबर सामने शांति निकेतन करके, अगेन वो भी बहुत बड़ी सोसाइटी थी, सिंगल ओनर थी, वहां शुरू हुआ तो अभी वहां पे ऑलरेडी 75 to 80,000 का रेट आया। सो अपने एरिया में भी क्या हुआ, अपना बिल्डिंग एक टाइम पे टॉप कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली एजिंग जो प्रोसेस हुआ उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा डल होते गया, आज स्टेगनेंट हुआ है चलो एक जगह पे, बट कहीं ना कहीं वो गिरा। लेकिन आई एम श्योर कि कहीं भी कोई भी बिल्डर आएगा, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 65,000 to 70,000 का रेट इजीली मिलेगा इफ ही मेक्स दैट प्रोजेक्ट इन अ गुड प्रॉपर मैनर एंड विथ ऑल एमिनिटीज। ठीक है, स्विमिंग पूल वगैरह नहीं भी होगा तो कोई, स्विमिंग पूल इज नॉट द क्राइटेरिया, बट अदर एमिनिटीज एवरीबडी वांट्स नाउ। तो उस हिसाब से जो बेसिक वर्किंग है, तो 1 BHK का जो अपना फ्लैट है, कमिंग बैक टू दी साइजेस, इज अराउंड 500 स्क्वायर फीट का है अपना, जिसके ऊपर अपने को रफली 300 स्क्वायर फीट, अपन 60% पकड़े तो 300 मिलता है। अभी 800 स्क्वायर फीट एज ऑफ टूडेज डेवलपमेंट इन ऑल द एरियाज can easily have one, you can say luxury 2 BHK, not premium but luxury, and either compact 3 BHK.
कॉम्पैक्ट भी ऐसा नहीं कि एकदम रेलवे का डब्बे जैसा कॉम्पैक्ट नहीं, प्रॉपर मतलब जो अभी अपनी साइज है, करंट साइज है, वैसा इजीली 3 BHK आपको मिल सकता है। और जो ऑलरेडी अपने 2 BHK के फ्लैट्स है, उस पे करीबन या तो कॉम्पैक्ट 4 BHK या लग्जरियस 3 BHK आपको प्रॉपरली मिल सकता है। फिर अगेन ऐसा है कि जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, मेजॉरिटी पीपल क्या चाहते हैं, वो हिसाब से अपन जब भी डेवलपर फाइनल करेंगे, वो प्लानिंग स्टेज पे ये सब डिस्कशन अपने को उनके साथ करना पड़ेगा। तो अभी जो मतलब ऐसा था कि पहले वो 15-20% 25% मिलने का जो कारण था, तो अपने दिमाग में नहीं बैठ रहा था। अभी हमको लगा कि भाई नाउ दिस 33(9) लकीली अभी स्कीम चालू है, तो इसमें अपन मेहनत करें तो वी कैन गेट, everybody can get be more benefited, and we can get a very good new complex with all the amenities. So अगर इस पे कोई डाउट्स है, प्राइमरी जो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उस पे से वी कैन ऑलवेज कम बैक टू यू। Any other questions? Wait, before we start the other things. 39 स्कीम क्या है, बता देंगे। सर BMC में there are sections, so every section there is a different section for different kind of buildings. ये जो नया DCR आया, पहले 33(9) was only for government lands, and again उसमें भी क्राइटेरिया यही था, 4000 से मीटर से ऊपर होगा तो 4 का FSI मिलता था। अभी ये ओपन फॉर ऑल हो गया, और 33(9) में अपने बेसिक प्लॉट पे अपना जो 1.33 कंज्यूम्ड है ऑलरेडी, मतलब 70,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और 1 लाख कंज्यूम है, मोटा मोटा मतलब एकदम। तो अभी उस पे अपने को 70,000 पे 4 FSI प्लस 0.35 फंजिबल मिलता है उस पे, और प्लस एमिनिटीज का एरिया प्लस ओपन स्पेसेस। तो ये सब करते करते ऑलमोस्ट अपना जो 1 लाख फुट का कंस्ट्रक्शन है आज, वो 4 लाख फुट तक जाएगा। So 33(9) is a scheme under the new DCR which is giving this provision, and there are 33(7) जो ओरिजिनल स्कीम फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ साउथ बॉम्बे था। अभी उसमें नॉर्मल 33(7) में कोई भी प्रपोजल वायबल नहीं हो रहा है, क्योंकि द प्रीमियम्स बाय द गवर्नमेंट मतलब BMC इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि वो रेगुलर स्कीम में तो कोई भी स्कीम वर्केबल हो ही नहीं रहा है। एडिशनल आप कोई भी ये फैंसी स्कीम में नहीं जाओगे तो आपका बेसिक रीडेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। अपना तो चलो ये लकीली साइज बड़ा है, इसके लिए अपने को ये अपॉर्चुनिटी मिला, बट देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स विच आर टुडे आल्सो मतलब एकदम गंदी कंडीशन में आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो लोग रीडेवलपमेंट में नहीं जा पा रहे हैं, बिकॉज उनको कंपल्सरी लास्ट में सेल्फ में जाके ही रीडेवलप करना पड़ेगा टू सेव द बिल्डिंग अगेन। मतलब अगर खराब कंडीशन है, डायप्लेटेड है, कभी C1 C2 का नोटिस लग गया तो दे डोंट हैव द ऑप्शन, या फिर माड़ा टेक ओवर करके उसको बना के देगी। What will be the condition for shops? क्या होगा shops? अभी जो वर्किंग आया है वो भी सिमिलर है। शॉप्स को भी अपन ने, उन्होंने पहले प्रपोज किया था 40% फॉर द शॉप्स और 60% फॉर द ये रेसिडेंशियल। हाँ हाँ, बट हमने जो उनको बोला था वर्किंग कि भाई जो भी है शॉप है या रेसिडेंस है, हमारे लिए तो ऑल मेंबर्स आर इक्वल, सो एवरीबडी बी बेनिफिटेड शुड बी ऑन द सेम लाइन। ठीक है, 2-5% ऊपर नीचे एक अलग बात है, बट अल्टीमेटली एवरीबडी शुड बी इन द सेम क्राइटेरिया। तो अभी का जो वर्किंग है उसमें शॉप को भी ऑलमोस्ट सिमिलर 50 to 60% के बीच में मिलेगा। ऑफ कोर्स ग्राउंड लेवल पे नहीं मिलेगा, बट वो तो ऊपर ही जाएगा बिकॉज ग्राउंड तो ऑलरेडी फुल है। समझा नहीं। वो ठीक है, जब भी लेआउट आएगा तभी आप समझ पाओगे, देख पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ से ड्राइंग तो बना नहीं पाऊंगा। हेलो, मुझे कह रहे शॉप ग्राउंड पे मिलेगा 60% अबाउट। नहीं जो हम लोग मतलब प्राइमरी हमने जो सोचा है उसमें ऐसा ही सोचा है कि जो एक्चुअल ऑलरेडी नीचे है उतना एरिया तो नीचे मिलना ही चाहिए, सब्जेक्ट टू DCR में बैठना भी चाहिए नया, बट मोस्टली जो अपना ओपन स्पेसेस है वो बैठ रहा है अभी के प्राइमरी वर्किंग के हिसाब से। तो उसमें जो एग्जैक्ट एरिया अभी अवेलेबल है नीचे, वो नीचे एरिया बड़ा तो होगा नहीं, प्लॉट तो अपना बड़ा होने वाला नहीं, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल पे जाएगा। डॉक्टर पीछे माइक दो। हाँ हाँ ओके, समझ ओके यस।
यस डॉक्टर साहब बोलिए. The biggest anxiety of majority over here is the time frame. So we get a rough idea on this Sure. today or after we finalize the builder. नहीं टेंटेटिव मतलब बहुत ऐसा पकड़ नहीं लेना मुझे, लेकिन टेंटेटिव मैं बोलता हूँ जो प्राइमरी वर्किंग किया है उसमें नॉर्मली अपन हाँ नहीं नहीं वो पूछ रहे हैं टाइम फ्रेम कितना टाइम में, नहीं कितना टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, राइट. हाँ नॉर्मल जो वर्किंग हो रहा है ना, द डे वी वेकेट द प्लॉट विद इन 4 years विल गेट द पोजीशन. उसमें जो शॉप वाला पोर्शन है वो शायद 1.5 या 2 साल के बाद तोड़ना पड़ेगा. पूरा ए बिल्डिंग बोल सकते हैं. Correct. क्योंकि सी मतलब कोई भी बिल्डर के एस्पेक्ट से भी मैं बोलता हूँ कि अगर शॉप को मुझे पहले हाथ नहीं लगाना है तो मेरा वो 1.5 साल का भाड़ा बच जाता है, प्लस शॉप को कंटिन्यूएशन मिलता है. जब भी उसको पीछे का प्लिंथ आ गया 4 5 6 लेवल चले गए उसके बाद ही वो आगे का तोड़ के उसमें मर्ज कर देगा वो. दूसरा ये टाइमलाइन इज इन 2-3 phases. सबसे बड़ा टाइमलाइन है अपना when we are collective and united and approval till we approve everything. वो ज्यादा टाइम है. उसके बाद अगर एक बार Question is obviously after everything starts. आफ्टर अप्रूवल Which I अगर approve. ब्रांडेड बिल्डिंग आ गया तो बहुत फास्ट है. बिकॉज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है अभी आजकल माइवन टेक्नोलॉजी, एवरी 7 day यू पुट अ स्लैब. सो एंड ऑफ कोर्स द साइज ऑफ आवर बिल्डिंग एंड द एरिया कोई भी माइवन के सिवाय करेगा ही नहीं, अदरवाइज उसको परवड़ेगा भी नहीं. क्योंकि टावर बनेगा तो टावर पायलट के भी तो बनेगा. हाँ और कॉस्ट वाइज भी क्योंकि रेंट में ही मर जाएगा कोई भी बंदा अगर वो चीज बचा नहीं जाता है पैसा थोड़ा. और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है तो वो नेचुरली दे विल, अभी तो उससे भी आगे जंप फॉर्म आया, वो तो एवरी 4 days स्लैब बोल रहे हैं. सो डिपेंड्स अभी कौन डेवलपर आता है उसके बाद अपन वो देखेंगे क्या हो सकता है पैसा. इसमें अच्छा डेवलपर आएगा तो हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा बेटर saving होगी, है. ब्रांडेड होगा हाँ, तो सब. बहुत बड़ी चीज है. हम लोग तो मर गए 13 साल भर भर के. हेल्प इज विकास भाई माइक लेके बात करो ना. आपका फायदा विकास भाई सबको मिलना चाहिए ना. हाँ क्या होता है कि इसके लिए जब करेंगे ना तो रेरा के डिसिप्लिन होते हैं. कोई भी बिल्डर लेगा ना तो उसके खुद के ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शन आता है. Correct. अगर उसने बोला 3 साल बोला है तो 3 साल का वो 4 साल तक खींच सकता है, वो 10 साल तक नहीं खींच सकता है. उसको पेनल्टी क्लॉज आ जाएगा. करेक्ट तो बहुत- करेक्ट बहुत सारे- बढ़िया है. 10% of project cost is I don't know. हाँ वो सी है ना. सो विकास भाई ने बहुत राइटली पॉइंटेड आउट किया जो यंगस्टर्स का क्वेश्चन था वेदर वी विल बी एबल टू डू दिस एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट. उसके लिए काफी चीजें अभी पॉजिटिव हो गई है बिकॉज सो मेनी गाइडलाइंस हैव कम फ्रॉम द गवर्नमेंट स्पेशली इन रेरा आल्सो कि सब जगह पे उनको लॉक करना किया जाता है. तो 99% with the size of our project and the level of the builder we are looking at, I don't think so वो कोई भी लैप्स करके आगे जाएगा या उसको परवड़ेगा. बिकॉज सी द रेंट पोर्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी होल प्रोसेस. तो आजकल टेक्नोलॉजी लोग इसके लिए अच्छा यूज कर रहे हैं कि भाई मैं कम से कम टाइम में एटलीस्ट पहला फेज में टेनेंट को हैंड ओवर कर दूं, सेकंड फेज में फिर मैं सेल हैंड ओवर. रेगुलेटर आने से फायदा ये होता है कोई भी इंडस्ट्री हो. शेयर मार्केट में जब सेबी 92 में आया था वहां से अभी 25 साल में रेगुलेशन कहाँ से कहाँ चले गए. बैंक में आया ऑफिस में. अभी जो रेरा आने से रेगुलेटर आने से पहले जो होता था 5-5 10 साल और पहुंच जाते थे वो टाइम गया सर. उन लोग का अभी ऐसा होगा ही नहीं और अभी बड़े ही काम कर सकेंगे. ये स्केल का प्रोजेक्ट कोई छोटा बिल्डर कर ही नहीं सकेगा बिकॉज ऑफ रेरा कंप्लायंस. वो कंप्लाई ही नहीं कर पाएगा. रेरा compliance and funding also, no? It's a huge amount. Yes, anybody else? सर नाम तो नहीं, मैं जैसे शुरू में ही बताया जो ब्रांडेड बिल्डर्स हैं अपन नाम के जैसे फॉर नेम से अगर बोलते हैं तो जैसे कल्पतरू है, गोदरेज है, अपना रुस्तम जी है काफी. और आजकल तो L&T इज अ कॉन्ट्रैक्टर. L&T कॉन्ट्रैक्टर है, डेवलपर नहीं. और जनरली L&T ने जो जो काम एज अ डेवलपर किया है वो कोई ना कोई डेवलपर वहां था जिसके पास पैसे का नहीं था फंडिंग. जैसे अपन सबसे बड़ा देखें तो ओमकार के साथ जो जेवी किया उन्होंने गोरेगांव वगैरह में बहुत बड़े बड़े टावर बनाए. उसके पास बहुत सारा लैंड था लेकिन ना उसके पास फंडिंग था काम करने का, ना उसके पास स्ट्रेंथ थी आगे काम कर सके. तो वो लोग ज्वाइंट होके करते. बट अदरवाइज शाहपुर जी एंड L&T दे आर प्योरली एज कॉन्ट्रैक्टर्स. और एक पॉइंट याद आया जो लोग पहले कंसर्न वाला पॉइंट था उसके आज अपने यहाँ पे हाईएस्ट रीडेवलपमेंट माटुंगा 5 गार्डन एरिया में होता है. वहाँ पे 800-1200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट वो पहले सब छोटे मोमेंट पॉप बिल्डर जो बोलते हैं छोटे बिल्डर करते थे. फिर हैप्पी होम जैसे बिल्डर करते थे.
अभी रेरा आने के बाद 3 साल में वहाँ पे 3 बड़े बिल्डरों ने प्रोजेक्ट किया। फर्स्ट डे 1/3 बुकिंग 1 घंटे में बुकिंग होता था और सब जगह पे रेट 10-15 हजार बढ़ गए, एमिनिटीज बढ़ गई। जैसे रेरा है वहाँ पे बड़े बिल्डर भी आ गए और बहुत फर्क पड़ गया उसके लिए। विरल भाई ऑल्सो थोड़ा सा अपने को एक्सप्लेन कर सकते हैं। विरल भाई इज अ वेरी गुड नेम इन पाइलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स। अपने बिल्डिंग के लार्सन एंड टुब्रो इधर ही बैठे हैं। एक सेकंड इकडे माइक विरल भाईला द्या, नंतर प्रकाशजीला द्या. पीएमसी क्या क्या पूछा पीएमसी? हाँ, नाम लेता हूँ. और जो सर का क्वेश्चन था बिल्डर का नाम, वो स्टेज जब पीएमसी टेंडर बनाएगा वाटर टाइप, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होगा टेंडर, उसके बाद डेवलपर का पेट आएगा। अभी वो स्टेज पे हम पहुंचे ही नहीं है। ઇનફેક્ટ શરૂઆત ही नहीं की है अभी तक हमने. વિરલભાઈ પ્લીઝ આગળ આવી શકો તો સારું. બધા ઓળખે તમને, કારણ કે તમે શું છે ઓફિસ ટાઈમિંગ વાળા છો, એટલે અડધા લોકો તો ઓળખતા નથી તમને. जब अपने बिल्डिंग में सिविल वर्क चालू था तभी हमने विरल भाई को बहुत परेशान किया। इनके हाथ हुआ बोल। हाँ, इनफैक्ट अपना बिल्डिंग का फाउंडेशन इज बीन डन बाय विरल भाई फॉर बाफना जी. Am I right, विरल भाई? My father. हाँ, सॉरी, इनफैक्ट इन लेगेसी इज कंटिन्यूइंग, उनके फादर ने किया है. तो अपन ये होप करें कि अपना भी फाउंडेशन विरल भाई ही करे वापस. इतनी मजबूत बिल्डिंग इनकी वजह से खड़ी हुई। यस विरल भाई प्लीज. सर આગળ આવી જાઓ પ્લીઝ. उल्टा हाँ. मैं D202 में हमारा एंड आई फाउंडेशन का काम करते हैं. सभी बिल्डरों के साथ कनेक्शन रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि वी हैव बीन वर्किंग फॉर अबाउट 55 years now. Wow, great. I've been working for 35 and this is a golden opportunity for any developer in Mumbai. सवाल ही नहीं है कि इतना टाइटल क्लियर कट प्लॉट एंड द शेप ऑफ द प्लॉट इज आल्सो वेरी considered. वास्तु compliant also. Everything is in favor of a good construction that can be proposed and done. We all have to be united, like you are saying. That is the first thing. We need to trust each other a lot. Everybody will be working towards the positive and Betterment of. development of this project. Building आज भी खराब नहीं है. Of course. Building is not bad at all, but times have changed. We can get better product, we can get a better lifestyle. The future generations can have a better lifestyle. Why not? ये प्लान में अपने को जाना चाहिए तुरंत आपके हिसाब से? We should go ahead with the redevelopment or not? बिल्कुल. Yes. आपका ओपिनियन जरा बताइए. Redevelopment, like you were saying, somebody was saying, I was not aware of that. कि 5-10 साल वेट करना चाहिए. हाँ. वेट नहीं कर सकते. Yes. आज golden opportunity. नहीं, some of the senior members were saying this. Rules change होगा. Correct. The infrastructure of the city is not 100% capable of this kind of development. Somewhere along the lines, if something changes, you will not realize. जैसा everything has evolved, it is only going to get difficult. Costs are rising and they will go through the roof. जितना कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से. Okay, sure. Thank you. And LTR is still doing development. They are doing? Yes. LNT So, का भी कर रहे हैं. my one small question to you. Would you be able to help us with some of the developers जो टेंडर नहीं भरेंगे उस टाइम पे, तो can we talk to them, we push them? सब लोग भरेंगे. Okay, great. सुपर ये सेम चीज हमको उन्होंने भी बोला था, जो पीएमसी हम मिले. कोई नहीं बचेगा. हाँ. Right from here, Ayajapur, Rustanji, all the names that we have taken. गोदरेज महेंद्र So- This is a prime area, prime location. नहीं, कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए वो स्टेज अपना बहुत दूर है अभी. पर सर जब भी देखो, एक बार टेंडर होने के बाद पूरा इवैल्यूएशन करके पीएमसी अपने को देगा, उसके बाद अपनी एसडीएम होगी, सब किसने क्या क्या ऑफर किया वो डिस्कस होगा. फिर समझो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी नेगेटिव है लेकिन उसका ऑफर सबसे अच्छा है. इट इज नॉट नेसेसरी वी गो विद द H1, वी माइट गो विद H2 H3 ऑल्सो. पर अपने को कैसा है, रेप्यूटेड चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, फंडामेंटली
डिजाइन वाइज और प्रोजेक्ट वाइज भी जो सबसे अच्छा बना सके वो भी चाहिए। थोड़ा कम एरिया में हाँ, कभी 2-5% कम मिला ना, उस पे नहीं जाने का, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विल ओनली कम इफ अ गुड डिजाइनर, गुड आर्किटेक्ट, गुड बिल्डर विल शेप इट अप, और जल्दी बना के देवे, और जल्दी बना एंड टाइम पे बनना चाहिए जो। valuation of brand तो it always stays Together. long time. करेक्ट। सो एंड वी आर रियली मतलब थैंकफुल कि भाई इनका भी काफी कनेक्शंस है, तो ही विल बी अ वेरी बिग। अभी इनफैक्ट आई विल रिक्वेस्ट यू टू जॉइन द रीडेवलपमेंट कमिटी, धीरज भाई आपको आना ही सो दैट जब भी आगे का अपडेट्स आएगा, ये पीएमसी तो चलो बेसिक चीज है, बट जैसे ही अपन कॉन्ट्रैक्टर के अपना डेवलपर फाइनल स्टेज पे जाएंगे, उसके पहले आपका सर्विसेज आप प्लीज देना। गेटवे का फाइलिंग अभी किया है उन्होंने। हाँ, इनफैक्ट गेटवे ऑफ इंडिया का भी कुछ फाइलिंग नहीं। गेटवे जो बिल्डिंग बना, अच्छा, ये LNT वाला। शिवरी में जो गेटवे करके बिल्डिंग आ रहा है, वो एलएनटी ने प्रोजेक्ट टेक ओवर किया। हाँ राइट, अरे वही तो एलएनटी ने किया है, सॉरी, मेरे तो बिल्कुल ऑफिस के पीछे ही है। सो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। ओरिजिनली वहां पे स्लम था और रबर वाला शायद कर रहा था, उससे एलएनटी ने टेक ओवर किया, और वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिससे पूरा अटल सेतु दिखेगा, पूरा It's a different एंड दे हैव लॉन्च्ड ऑन द नेम ऑफ गेटवे। gateway. हाँ, वो डिजाइन भी वैसा ही बनाया है गेटवे का, और उसमें डाला हुआ। Foundations have been completed. अच्छा, फाउंडेशन हो गया ऑलरेडी? हाँ, काफी टाइम से चल रहा था, गाड़ियां निकल रही है, आ रही है, जा रही है। सो ये जैसे वीरेन भाई बीरिंग कमेटी से हम लोग रीडेवलपमेंट कमेटी में देंगे, सब टावर से 3-3 4-4 लोग होंगे एक कमेटी में, सब ग्रुप में नाम भी डाल देंगे। जिसको भी डाउट है, कोई कंसर्न है, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ के प्लीज मिसगाइड मत होना, उठा के फोन कर लेना कोई भी कमेटी वालों को, वो आपको मीटिंग करवा देंगे। कोई भी डाउट है, जैसे आपने बोला ईमेल ये सब करो, ठीक है, बैठ जाने का टेबल पे मीटिंग कर लेना, साथ में किसी के साथ भी बैठ के क्वेरी सॉल्व कर लेना, बाकी वो सब लिख के ये सब करके आपने जो अभी वो 2/3 वाला जो आपने मेजोरिटी देखने का बोला, डॉक्टर साहब ऑफिस में फाइल पड़ी हुई, कभी भी आके ऐसे ही बोल दोगे लेटर ईमेल क्या लिखने का है, घर की बात है, देख सामने इंस्पेक्शन अवेलेबल है, कर लो, अपना कोई छुपा नहीं है कोई भी और डॉक्यूमेंट। उसमें कुछ है ही नहीं। आई मीन यू कैन वॉक इन एंड टेक ए लुक, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेटर लिखना, ईमेल क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आपका। नहीं, और क्या होगा, सी ईमेल तो ठीक है, ईमेल डेफिनेटली अपन दे देंगे। थैंक यू। विरल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड वैल्यूएबल कमेंट्स। और कुछ बोलना है आपको इसके? हाँ, अजय कहीं तुम्हारे के वो है। अच्छा, एक क्वेश्चन एज अ नॉर्मल मेंबर आई एम आस्किंग कि जो स्पीड से परमिशंस वगैरह अभी मिल रही है, पहले इवन आई एम अ डेवलपर, पहले अपने को परमिशंस में बहुत टाइम जाता था। जब से ये डीसीआर, ऑटो डीसीआर आया, उसके बाद नया डीपी आया, सब ऑनलाइन हो गया, तो अगर आप प्रॉपरली उसको गाइडलाइंस के हिसाब से डालते हो तो परमिशंस आर कमिंग फास्ट। ऑफ कोर्स पैसे का काम तो पैसा ही करता है, दैट इज ऑफ कोर्स, वो तो अभी तक कोई सुधरा नहीं है भारत में, लेकिन जो हिसाब से मिल रही है उस हिसाब से स्पीड ऑफ द गेटिंग द परमिशन एंड एग्जीक्यूटिंग हैज बिकम मच इजियर, व्हाट आई फील। एम आई राइट और रॉन्ग? चोरी का या खत्म हो गया। चोरी तो खत्म ही हो गई सर। जो कॉर्पोरेशन को देना है वो भी रेट फिक्स हो गया है। करेक्ट, हाँ, उनका भी पर स्क्वायर फीट बंधा हुआ है। So- it is becoming a simpler project यस, to execute. या ओके। Only thing is liquidity होना चाहिए, funding होना चाहिए। हाँ, सो मेजर जो एज अ डेवलपर मुझे दिखता है, एक तो आपके पास टाइटल क्लियर होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नहीं तो करोड़ों रुपए डालने के बाद भी प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, कितने प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, लिटिगेशन है, ये है, वो है, चल रहा है। लकीली सोसाइटियों के केस में आजकल कोर्ट भी बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई अगर इंडिविजुअली 2-4-10 लोग करते हैं तो कोर्ट रुका के फेंक देती है, बट टाइटल ऐसा चीज है, कहीं भी डिफेक्ट निकलता है तो देन देयर इज नो गारंटी वो प्रोजेक्ट 2 साल में होगा या 20 साल में भी नहीं होगा। Luckily, we are 100% through with that title because there is a building which is originally was on the society name. Again, it is today also in the society name, and this is the second generation we are going. And it was clear right from the occupation we have done. You have taken, yes. So luckily, उसके बाद there is no नहीं, कभी कुछ आया ही नहीं है। so जो उस टाइम पे भी केसेस थे, जो डबल कुछ गड़बड़ थे, वो भी लकीली जीरो है आज। हाँ, so we are also through with that. So today we are absolutely transparent, clear, 100% it's title. a clean slate. We don't have an issue on Okay, thank you. मेरा क्वेरी खुद का था, इसके लिए मैंने बोला जस्ट। डॉक्टर अपने को कहा हाँ समझना है, एक दूसरे को ट्रस्ट करके हाँ। जो बांधछोड़ करनी पड़ती है ना, यस, गुजराती में बांधछोड़ बोलते हैं, इंग्लिश में उसको लेट गो बोलते हैं। that is the most important thing. आणि मराठी में उसको मागे पुढे थोडाफार करायला लागेल आपल्याला, ऐसा बोल के फिर आगे बढ़ेंगे आपण। So, थैंक यू सर। निखिल भाई, डॉक्टर हाँ, please. एक सेकंड,
डॉक्टर There was somebody who was advocate Yadav. ये भी चल रहा है ना? नहीं फाइल ले लो, दिख लो ये। नहीं ठीक है हाँ। हाँ, but it is there, don't worry. 100 Anytime Agrawal ji can consent. come and see. Somebody from Yadav family. You are the advocate, I think. Okay. तो ग्रैंडसन कुछ एडवोकेट है, ऐसा इनका मैसेज आया था मुझे. हाँ अच्छा, ओके. हाँ ओके, 2 मिनट प्लीज. बाजूला घ्या. Hello. या I wanted to ask whenever we are proposing to the developer certain condition that every member should get whatever you are proposing from on our behalf. So that list of what you are proposing, we will get to read what you will circulate. And they will I'll come to that. 1 minute. See, once we finalize the PMC पूरा documentation बनाएगा. जो documentation बनेगा, before going for the tendering, we will be updating on the group. और किसी को physical चाहिए तो physical copy देंगे. So everybody can go through it. अगर किसी का कोई चीज by mistake, by chance कभी कोई miss हो गया रहेगा, then you can give the suggestion. We can always incorporate that condition also. like floor allocation. Right now we are on which floor? So नहीं, floor allocation is normally जो process होता है, it is there are 2 ways of it. Either they go for the lottery. Second is आपका जो existing floor है, समझो 5th floor है आपका. अभी जब भी बिल्डिंग बनेगा, नेचुरली अभी पार्किंग का जो रूल्स है उसके हिसाब से 3 या 4 पोडियम आता है. तो फ्रॉम फर्स्ट लेवल योर 5th फ्लोर विल कम. सो अल्टीमेटली टुडेज 5th फ्लोर विल बिकम 10th फ्लोर. दिस इज बेसिक. आई एम जस्ट सेइंग, जैसे आगे बढ़ेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आते जाएगा. जो है उसके नीचे नहीं जाओगे. यस, सिंपल. नहीं मिनिमम 4 या 5 तो लेवल ऊपर जाओगे ही आप. जो है उसके नीचे नहीं जाओगे. बिकॉज वो तो पार्किंग इज द फोरमोस्ट कंडीशन फॉर एनी बिल्डिंग टुडे एंड इट इज मस्ट. अच्छा, अपनी जो साइज है उसमें लकीली अपने को वो टावर पार्किंग या पजल पार्किंग में नहीं जाना है. वो अपने पास इतनी बड़ी जगह है, जो ब्यूटीफुल जगह है, जिसमें अपने को आराम से रैंप पार्किंग में मतलब बहुत सारी गाड़ियां फिट हो जाएगी. पोडियम और बेसमेंट, अपना बेसमेंट होगा और पोडियम होगा, तो सब कुछ हो जाएगा. इट विल बी लाइक प्लिट 4थे माले 5वें माले पे पूरा आपका ग्राउंड लॉबी लेवल आ जाएगा. अगेन देयर आर सम, मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ. बहुत लोग इसमें अपग्रेड भी होंगे शायद, कि भाई मेरा 2 BHK बन रहा है, अभी एक्स अमाउंट का बन रहा है, आपका सेल का समझो 3 BHK. तो बिल्डर ऑल्सो ऑलवेज गिव ऑप्शन कि भाई आप ये डिफरेंस भरो तो वी विल अपग्रेड यू टू दिस अमाउंट. तो कभी ऐसा है कि आपका समझो एज अ टेनेंट आपका नीचे आ रहा था, समझो 10th फ्लोर आ रहा था, कल आपने 22वें माले का एक्स अमाउंट का फ्लैट लिया, तो वहां भी अपग्रेड होने का पूरा चांस है. कोई अगर आपको चेंज नहीं करना है तो नॉर्मली भी तो आप 4-5 लेवल तो ऊपर जाने वाले. क्योंकि बहुत दूर की बात है, मैं समझता हूँ कि अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं खाली ये चाह रहा हूँ कि ऐसा क्लॉज होता है जैसे मैं 9th फ्लोर पे हूँ तो वहाँ पे 5 फ्लोर की पार्किंग है, उसके बाद भी 9th. सर, बिफोर यू साइन द डेवलपमेंट अग्रीमेंट विद द बिल्डर, इंडिविजुअल सबका असेसमेंट वो करेगा, सबके साथ जब भी साइन करेगा, आप पूरा पढ़ने के बाद ही साइन करोगे, या आप या कोई भी, मैं भी, बिकॉज आई ऑल्सो गॉट 10 फ्लैट्स 2 शॉप्स, तो मैं भी तो हर चीज पढ़ के मैं भी मेरे लॉयर के पास जाके पढ़ाऊंगा एक बार कि भाई बाबा एक बार पढ़ ले, कुछ अपने हिसाब से तो बाकी नहीं रह जाता है. सो बट नेचुरली एवरी इंडिविजुअल गेट देयर complete rights to go through their own agreement as well as the society agreement also. माइक यादव जी इधर देना बाद में. अच्छा तुम्हें क्या कहना, पहले ये एक लेके जा, नहीं तो इधर से लेके जा. Just wanted time for this project. Really appreciate. I think I agree with all the things that have been said till now. Sir, if you can come in the front, you look a very new face to many of us. नहीं मैं पहचानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग. Short question. Yeah. So I just wanted to know one thing, because we have already got consent from more than 2/3 members. Yeah. My question is, when we took the consent, we said it's a in-principle consent. Absolutely. This is not a final consent. No. So which means once the final terms conditions are presented, Yes. then we will take the consent from the members. ऑफ कोर्स. So मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करूंगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है. इट माइट बी इन लॉट ऑफ पीपल्स माइंड ऑल्सो. सी, जैसा 79A का प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद ये फाइनल कंसेंट्स वगैरह सब आएगा उसमें. तो तभी जो भी कंसेंट में लिखना होगा, जो भी होगा, सबको पढ़ के ही साइन करना है. टुडे प्रिंसिपली वी हैव मेट टू मेक अ फाइनल थॉट ऑन द रीडेवलपमेंट प्रोसेस,
एंड टू गेट द बेस्ट वर्किंग, वो करके अपन आगे बढ़ेंगे। फिर कल उठ के समझो खुदा ना खास्ता वर्किंग अगर नहीं आती है बराबर, वी माइट होल्ड दिस प्रोजेक्ट देयर एंड देयर इटसेल्फ, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट आई एम सेइंग द वर्स्ट सिनारियो। सो वो कंसेंट जो आई थी सबने ये लिख के दिया था कि भाई यस आई एम रेडी टू गो फॉर रीडेवलपमेंट, यू प्लीज इनिशिएट द प्रोसेस। That consent, as you rightly said, in principle था प्रोसेस चालू करने के लिए, not for the final. अच्छा, उस पे ही हमने ये मीटिंग आज का लिया कि भाई जो वो मीटिंग हुआ था एसजीएम, उसके बाद पीएमसी वगैरह अपने को जो ढूंढना था वो ढूंढे, सबसे रिपोर्ट लिया, बेसिक डिस्कशन हुआ पीएमसी के लिए, देन एडवोकेट टीम के लॉ फर्म्स के लिए। उसका जो रिपोर्ट था 6 महीने का वर्किंग का पूरा, वो आज हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड नाउ वी आर ऑन दैट लेवल कि बाबा यहाँ से हम शुरू करके जंप कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि कल खाली करना पड़ेगा। हाँ, और बहुत सारे लोग ने मेरे को ये भी पूछा कि सर आप, मैं आज साइन करके दूंगा तो कल खाली करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज अ प्रोसेस टू फॉलो। 2 साल लगेगा। द डेवलपर का जिस दिन डेवलपमेंट अग्रीमेंट साइन होता है, उसके बाद वो परमिशन के लिए पुटअप करेगा, जो मिनिमम 3 महीने का नॉर्मल बेंचमार्क आईओडी का है। आईओडी जिस दिन आ जाती है, मतलब उसका, और नॉर्मल टर्म्स में मैं बोलता हूँ कि आईओडी आने का मतलब ये है, आपका टाइटल क्लियर है, आपका ओपन स्पेसिस क्लियर है, आपका जो ड्राइंग्स है वो क्लियर है, एज पर एफएसआई नॉर्म्स है। ये सब होने के बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अपने को, उनको नॉर्मली दे आस्क फॉर 2 मंथ्स, बट उसके 3 महीने के बाद अपने को 3 महीने के अंदर अपने को खाली करना पड़ेगा। तो आज से अगर मैं सोचूं कि भाई आज मेजॉरिटीली पॉजिटिवली सब लोग हाँ बोल रहे हैं, तो द प्रोसेस टू फाइनलाइज द डेवलपर फ्रॉम हियर कंफर्टेबली लुक्स कि 6 महीने में वो स्टेज पे अपन आ सकते हैं। उसके 3 महीने में समझो आपका आईओडी आ जाएगा, और उसके 3 महीने के अंदर अपने को खाली। तो 1 साल तो आज से भी लगेगा ही अपने को। 2 साल का पीरियड बोल। एक का 2 हो सकता है, हाँ, 1 का 1.5 हो सकता है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपन कितना फास्ट जा रहे हैं, अपने को अच्छा कौन सा ये अपना डेवलपर आ रहे हैं, कितना निगोशिएशन हो रहा है। बट मोटा मोटा विद इन 1 to 1.5 ईयर के अंदर वो स्टेज पे अपन आराम से आ जाएंगे। Great. Thanks for the clarification. Just one more thing. You said that current built-up area is 1 lakh square feet. Yes, And it will become 4 lakh square feet. right. Ballpark. These are all ballpark numbers, not exact. Yes. 99,000 current हाँ. built-up. So, which means from that 4 lakh square feet, 1,60,000 will go to the members. Perfect. Balance 2,40,000 will go to the redeveloper towards the cost of redevelopment. नो 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 No, no. सर, पार्किंग का जो एरिया होता है ना, वो भी वो 4 लाख फुट में आ जाए। तो पार्किंग का समझो फॉर एग्जांपल 50,000 फुट का जो बनता है या 60,000 फुट बनता है, वो भी अल्टीमेटली तो अपने लिए और जो सेलर, जो बायर्स आएंगे उसके लिए। मोटा मोटा जो अभी का वर्किंग दिख रहा है ना, उसमें जनरल केस में 60% गोज टू द एक्चुअल टेनेंट्स एंड 40% गोज इन द सेल, तो ही वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट कवर कर सकता है। ये आपका क्वेश्चन है ना, हम लोग जब पीएमसी टेंडर इनवाइट करेंगे, जब वो आएगा और टेंडर कंपैरेटिव जब होगा, तभी पीएमसी पूरा यहाँ पे स्क्रीन पे बैठ के यहीं पे अपने प्रेजेंटेशन करेंगे, और जब वो स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन देंगे तभी उसमें सब डिटेल एक्चुअल नंबर्स के साथ कंपैरेटिव्स आ जाएंगे, और तभी क्लैरिटी ज्यादा आएगा। These are, don't stick to these numbers please. This is not the 50% could be 50% or even 80%. Yeah, it could नहीं, not 80, but मतलब थोड़ा बहुत तो इधर exact numbers only can come when once the whole process is completed. टेंडर ओपन, जब टेंडर बिड आएगा, बिड आएंगे अपने को टेंडर खोलने के बाद, तभी कंपैरेटिव अपने को प्रेजेंटेशन पीएमसी करेगा अपना, पूरे अपने स्क्रीन पे सब कंपैरेटिव देखेंगे। एवरीवन विल बी, इट विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट बोल प्रोसेस। उन लोग 500 करोड़ का उसमें खर्चा और प्रॉफिट कैसे कवर करेगा? सो Right, that's the understanding. और अभी कमल भाई, अभी जो अपने पास नंबर्स आए हैं, डोंट, मतलब ये पकड़ना नहीं कोई भी, लेकिन जस्ट I understand. जैसे कमर भाई ने बोला कि अपने को बेस कुछ तो वर्किंग चाहिए था, इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल में ऐसा है कि करीबन 500 करोड़ का खर्चा है और 750 से 800 करोड़ का सेल है, जिसमें उसका इंटरेस्ट कॉस्ट निकलने के बाद उसको करीबन 100-150 करोड़ रुपया बच सकता है। सो अप्रोक्सीमेटली वही 25% ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू का जो उनका सेल का वैल्यू का है, दैट नंबर कम्स नियर बाय। इसमें कॉस्ट कैन वेरी, एक बेसमेंट लेते हो आप, 2 बेसमेंट लेते हो, कितने टावर, अब सब कितनी अलग अलग है, कितने एमिनिटीज देते हैं? और एमिनिटीज कितनी देता है, क्या है, उस पे भी कर रहा है। और फिनिशिंग कैसी है, आप 4 स्टार बना रहे हो, 5 स्टार बना रहे हो, जो डेवलपर कैसे आता है, वो क्या देता है, तो Commercial terms are part of the tender. करेक्ट। So we should save this topic for the next time, please. Let's not get into this. हाँ, गारे इनला द्या ना इकडे। जतीन को बोल रहे हैं। हाँ, और एक फिर जतिन भाई को भी दो। ये
मैं वही सोच रहा था अभी भवानी यूथ क्लब का कोई हाथ ऊपर नहीं हो अभी तो पहला जतिन आ गया धीरे धीरे ठोक रहा है वो धीरे धीरे ठोक रहा है एक एक कर मेरा नाम एडवोकेट योगेश देशमुख है। आई एम अ पार्ट ऑफ अ लॉ फर्म एंड मैं फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं मेरे लॉ फर्म को। सर आप हाँ ना ना चल या प्लीज प्लीज सर ने कहा था कि लाइक आपकी कुछ लॉ फर्म के रिगार्डिंग आपकी बातचीत चालू है तो अभी लाइक मीटिंग के बाद आई विल लाइक ऑफिशियली टॉक टू हम आपको मीटिंग में बुला लेंगे विल कॉल यू इन वन मीटिंग आल्सो आप पहले प्रेजेंटेशन देना एंड नेक्स्ट विद इन कपल ऑफ डेज और समथिंग यू कैन पुट योर ऑफर आल्सो कौन सा फ्लैट नंबर आपका अच्छा C10 अच्छा यादव जी अरे यादव जी के अच्छा। और विच लॉ फर्म यू आर कनेक्टेड विद लॉ फर्म करके है लॉ फोर्ट फोर्ट लॉ फोर्ट हाँ ओके सो वी आर लकी टू गेट लॉट ऑफ पीपल जो अपने को ही अपने घर से ही मिल जाएंगे तो काफी खर्चा भी बचेगा और अपने को कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई ये कहीं भी अपने को नुकसान नहीं पहुंचा देंगे जतिन माइक गारे जतीनला माहित द्या समर ताई ताई सांगा हाँ हाँ प्लीज प्लीज जतीन भाई और एक मिनिट हाँ बोला आम्हाला पैसे वगैरे काय भरावे लागणार नाहीत ना अशा याने बघणार का पैसे न भरता मिळणार आहेत असे डेव्हलपर वेरी गुड क्वेश्चन यस देखो आंटी ने ना एकदम पॉइंट ब्लँक रेंज से वो चीज पूछा है एकदम बराबर क्वेश्चन काही जे आता आपल्याला आलेला आहे ऑफर त्याच्यात आपल्याला एक पण पैसा भरायचा नाही एक्सेप्ट गव्हर्नमेंट टॅक्सेस जे आपण सीए फर्म ठेवणार आपण इव्हॅल्युएट करणार समजा आज आपल्याला भाडा भेटते भाड्यावर आता एक ऑर्डर आले होते मध्ये बाबा की याच्यावर जीएसटी लागते नाही लागते इट इज दॅट लॉट ऑफ डिस्क्रिपन्सी इज गोइंग ऑन दॅट बट अदरवाईज आपल्याला कुठलाही पैसा न भरताना एवढं भेटला पाहिजे या रिपोर्ट प्रमाणे आपल्याला प्रायमरी दिसते जसं जसं आपण पुढे जाणार पण आपण एकदम क्लिअर आहे की बाबा वी आर नॉट गोइंग टू पे एनिथिंग वी आर ओनली गोइंग टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द डेव्हलपमेंट हा आतमधलं फर्निचर वगैरे असेल ते तर नॅचरली आपला कॉल असेल पण जे बेसिक एम्युनिटीज आणि जे रॉ फ्लॅट बिल्डर आपल्याला देते त्याच्यात कसं आहे नॉर्मली सिव्हिल वर्क इज कम्प्लिटली गिवन बाय द बिल्डर सिविल वर्क हाँ तुम्हारा तेला फैंसी करायचा है देन यू कैन ऑलवेज टेल द बिल्डर कि बाबा मेरे को इससे प्रीमियम करना है आप या तो इसका पैसा काट के दो या मैं मटेरियल देता हूँ आप इसको प्रीमियम करके दो दैट इज ऑन द लास्ट लेवल स्टैम्प ड्यूटी अदरवाइज स्टैम्प ड्यूटी एक अपने को आता है एज अ जो एडिशनल एरिया मिलता है उसका दूसरा जीएसटी का है लेकिन जो गवर्नमेंट टैक्सेस है वो अपने पे है बाकी कोई भी चीज न भाड़ा अपने पे है कॉर्पस फंड भी वो देगा और अदर जो भी चार्जेस होंगे इट इज विल बी ऑन द बिल्डर इटसेल्फ डेवलपर इटसेल्फ जतिन अरे क्या हुआ समर how do you choose the builder? How do we choose the builder eventually? Very After good. tender, is it the task force that is there that chooses it, or is it like a voting that will happen, or how? So the PMC first thing PMC will evaluate all the bids received on a technical parameter as well as commercial and the balance sheet strength. So basically there is one technical evaluation, there's commercial evaluation, there'll be balance sheet evaluation and the track record. Who has built how many, what the past, I mean when you have a large brand name, it makes life much more simpler. Listed company balance sheets are available for last 5 years, 10 years. You know, so then, and RERA has made life very, very simple now. Everything is regulated, everything, when the RERA number comes, when they apply, everything will be on the website, finishing date, you know, everything will be on the website. So evaluation will be on various parameters. There will be a proper presentation done by the PMC here, and he will recommend somebody. Then we have to approve individually. I mean, we will get a chance to participate in the final. I will just add one point. हाँ निकुंज भाई एक ही सेकंड खाली माइक फिर निकुंज भाई को दे देना एवरी इंटरवल वी विल बी ट्राई एंड कीप मीटिंग्स प्रिफरेबली आज अगर ये लोकेशन और इनका खाना अगर अपने को अच्छा लगा तो सो दैट टाइम टू टाइम अपना जो जो अपडेट्स होता है एक लेवल के बाद का वो अपन मेंबर्स के सामने भी रखेंगे सो मेंबर्स विल बी अवेयर आल्सो प्लस उस लेवल पे कोई क्वेश्चंस है तो वी कैन ऑलवेज सॉर्ट इट आउट एंड गो अहेड सो इफ एवरीबॉडी अग्रीज खाना खाने के बाद आप प्लीज अपना रिव्यू लिख देना है व्हाट्सएप पे मैसेज डालना निकुंज भाई
નથી ચાલુ हाँ बटन दबाए रख वो चालू थी तो गुड इवनिंग एमसी, थैंक यू आप लोग सब ये आज मीटिंग अरेंज कर रहे हो, सब लोग को बुलाया है, फादर सन फैमिली, तो सब क्लियर्स एंड फायदे क्लियर्स सब डिस्कस कर सकते हैं। Yes. विद योर काइंड परमिशन आपने सब फायदे तो दिखाए, कैन आई आस्क अबाउट क्लियर्स व्हिच एब्सोल्युटली यू शुड आस्क। सो मैंने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हम लास्ट 5-7 साल से जो देख रहे चलते हैं आपको समझ आ रही है। हमने गेट का काम किया तो उसमें इरेगुलरिटीज थी, हमने पीछे गेट खोलने गए उसमें इरेगुलरिटीज थी। आज आप बोल रहे हैं हम क्लियर टाइटल दे रहे हैं, हमको क्लियर टाइटल मिलेगा उसका हमको एक क्लैरिटी चाहिए। एक क्लियर टाइटल हम दे रहे हैं उसके क्लैरिटी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन एक सेकंड, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैं आपका आंसर करता हूँ, राइट? सो इट वुड बी इजियर, क्योंकि आप 4 क्वेश्चन आगे चले जाओगे तो पहला क्वेश्चन ही भूल जाएंगे। सी अपना टाइटल क्लियर है। सी द problems you mentioned is not related to the title, it is related to the function of the building। और जब भी बिल्डर लेता है अपने से उसको टाइटल इन द सेंस एडवोकेट का सर्टिफिकेट दे, कोई जो भी अपना एडवोकेट रहता है वो टाइटल सर्टिफिकेट देता है कि भाई ये प्रॉपर्टी फ्री ऑफ ऑल इनकम्बरेंसेस, कोई इस पे कायदा किया केसेस नहीं चालू है बीएमसी, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर कुछ भी अगर चालू भी रहेगा तो नॉर्मली क्या होता है कि, और अभी जब भी मतलब एक बार उसने पुल डाउन किया उसके बाद जब भी बिल्डर अपने को हैंड ओवर करेगा उसके बाद भी शायद आप बोल रहे हो वैसे लैब्स कुछ रहेगा या कुछ रहेगा, तो अभी कोई भी बिल्डिंग बिना ओसी के अपन अंदर जाते ही नहीं है। सो 100% अगर ओसी कभी मिलेगा जब भी बिल्डिंग का हर एक चीज वॉट एवर दे हैव प्रॉमिस, वॉट एवर दे हैव पुट इन द प्लान, दे एग्जीक्यूट एंड कंप्लीट, ओनली पोस्ट दैट दे कैन गेट दी ओसी। तो वो सब चीज पहले में और अभी में बहुत फर्क आ गया है, तो उसमें कोई डरने जैसी या अच्छा अपने पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा छोटा सा कोई पर्सनल मतलब काम था या ऐसा। जो पीछे का गेट की आपने बात किया, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो वर्किंग में काम होना चाहिए। समझो हम एक कंस्ट्रक्शन पूरी पार्किंग लॉट का किया, पीछे गेट का किया या कोई भी छोटा मोटा काम किया, रिसर्फेसिंग किया, उसके बाद जो चैलेंजेस आ रहे हैं अभी सर्विसिंग में कोई स्लिप हो रहा है, रिसर्फेसिंग का इशू है, वो सारे इश्यूज को एड्रेस प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है सर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी ग्रुप पे हम देख रहे हैं किसी ने कोई स्लिप हो गया, सो आफ्टर कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं या बिफोर कंस्ट्रक्शन पुराना कंपेरेबल नहीं है माय फ्रेंड। सी वन थिंग, ओल्ड मैटर्स नाउ यू शुड, आपको मालूम होना चाहिए पीछे के गेट के लिए क्या प्रॉब्लम हुआ, ठीक है? व्हाट परमिशंस आर नीडेड, वी ट्राइड इन द बेस्ट एफर्ट बेसिस। नहीं है वो हाँ, वो ऑफिशियली अलाउड नहीं है, हमने ट्राई किया, वी फेल्ड, बट दिस इज नॉट ऑफिशियली अलाउड। वो पीछे वाले ने ऑब्जेक्ट, अगर नहीं ऑब्जेक्शन है तो अपना खुल जाता था, और हम लोगों ने ट्राई किया, बट वो पीछे वाले ज्यादा अलर्ट थे, उन्होंने तुरंत पुलिस में कंप्लेन कर दिया, ऑफिशियली अलाउड। पुलिस से ज्यादा उसने सर्टन ऐसे लोगों को बुला लिया जो आके अपने को फिर अटका दिया। तो देयर आर टेक्निकल थिंग, प्रॉब्लम है, पुरानी बिल्डिंग है, सब मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी पाइप का एक प्रॉब्लम है, प्लम्बिंग सारा डेटेड है, प्लम्बिंग का कम से कम हमने कोट लिया है 1.5 करोड़ के ऊपर सारा चेंजेस का आएगा, और उसके लिए अंदर तोड़ना भी पड़ेगा सब। ऊपर का सीलिंग टूट के नीचे गिर रहा है, सीलिंग ऊपर से नीचे टूट, तो प्रॉब्लम्स आने लगे हैं सर्टेन प्लेसेस। आज पानी का ऊपर का टैंक है, आधा क्रम्बल होके उधर से उसके सारे यू नो प्लास्टर, उसी का आंसर दे रहा है। लेट अस फिनिश आपका और दूसरा एक बात बोलूंगा निकुंज भाई, नहीं आई कम टू दैट आल्सो, कि दूसरा एक ये होगा कि सर जब भी तक अपना रीडेवलपमेंट होके हैंडओवर हो जाएगा तब तक तो आप सब बच्चे लोग सीट पे आ जाओगे, तो वो तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग प्रॉपर काम करके हमको देवे, क्योंकि हम लोग भी अंकल लोग की एज पे कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे तब तक। तो आपका जो ये जो कंसर्न है आपका, इसीलिए हमने तो आप लोग को वो आपको अच्छा है कि आपको चिंतन मनन करना चाहिए कि भाई अपने को आगे 5 साल के बाद ये सब काम करना पड़ेगा, तो अभी से कोऑर्डिनेशन करते हैं, टीम बनाते हैं और काम करना है। और एक पॉइंट आपका, हमने जो पहले आपको बताया, चार सब जगह से कमेटी ए बी सी टावर से कमेटी बनेगी, एंड यू हैव प्रोफेशनल एजेंसीज डूइंग इट एंड अ प्रोफेशनल डेवलपर डूइंग। हम लोग नहीं कर रहे हैं कि आपको हमारा कोऑर्डिनेशन का कंसर्न होगा, हम लोग कुछ काम नहीं करने वाले, अपना काम है बेस्ट टीम हायर करो, लेट द बेस्ट प्रोफेशनल्स वर्क एंड लेट द बेस्ट बिल्डर वर्क। हम लोग को नहीं करना है काम, वी एक्सपेक्ट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ दिस, मतलब पूरे सिनेरियो। तो यहाँ से अपना काम एक ही है। मैं पहले ही आपको क्या बताया कि भाई एक
टीम अच्छी बन जाएगा ना प्रोफेशनल लोगों की, एजेंसीज की, तो ऑटोमेटिकली काम सही चलेगा। हम लोग को नहीं करना है। भवानी शंकर रोड पे इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं आज भवानी शंकर रोड में एट प्रेजेंट फ्रॉम पुलों से लेके आगे तक आप देखिए इतना सारा कंस्ट्रक्शन है और 5 इयर्स का आप जो मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट सोच रहे हो तो आप जो रेट एप्रिसिएशन जो सोच रहे हो इन्फ्लेशन कॉस्ट और वो सारा कॉस्ट सारे फैक्टर्स को आप प्रोजेक्ट कब स्टार्ट कर रहे हो? आज का कोटेशन अलग रहेगा, 1 ईयर 2 ईयर बाद का कोटेशन इन्फ्लेशन कॉस्ट रहेगा। अच्छा मेंटेनेंस भी आप प्लीज वो प्लीज आप एमपी अपॉइंट करोगे तो मेंटेनेंस क्या बढ़ेगा? हाँ वो एरियाज पे प्लीज करेंगे डेफिनेटली करेंगे। निकुंज, ये लास्ट पॉइंट आपने जो बताया, आप 20 साल का हिस्ट्री देख लो, कहीं भी आप कोई भी चीज पे 7% इन्फ्लेशन, इंडियन इकोनॉमी में 7% इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, अपना ब्याज का दर उसके ऊपर होता है हमेशा। एक स्टैंडर्ड बेसिक इकोनॉमिक्स थंब रूल डेटा थंब रूल पकड़ लीजिए, उसके ऊपर जो ग्रोथ होता है अपना इकोनॉमी का, हमेशा जीडीपी के ग्रोथ के ऊपर नॉर्मल नॉमिनल ग्रोथ अप्रिसिएशन का होता है। 10 साल का विंडो कोई भी पकड़ोगे, रियल एस्टेट विल बीट दैट 7% इन्फ्लेशन प्लस बैंकिंग एफडी रिटर्न। तो आप जो बोल रहे हो बाद में क्या होगा, ये वो 10 साल का विंडो में सब अप्रिसिएशन जो लेट मी फिनिश जो अप्रिसिएशन होता है ना, पास का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए 40 साल का आपने नहीं कॉस्ट बोल रहा हूं, जो कॉस्ट हमारा प्रोजेक्ट का जंप होगा ना निकुंज वो हमको नहीं देखना है, वो हमको नहीं देखना है। दैट इज नॉट अवर कप ऑफ अभी टी वो बिकॉज कर रहा है। सी कल जो बिल्डर अपने को मतलब टेंडर भर के दे रहा है और जिसको अपन फाइनल कर रहे हैं वो उसका लुकआउट है, बट डेफिनेटली जो भी आदमी आएगा वो ये सब चीज पे वर्किंग करके तो आएगा ही ना, क्योंकि उसका तो रोज का धंधा है। समझो एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं कि कोई गोदरेज ने आपका टेंडर बिड किया है, वो बिडिंग में वो उसका एक्सेल में वर्किंग में वो इन्फ्लेशन पकड़ के वो करेगा बिड कि हमको ये इतना एक्स्ट्रा देगा, हमको नहीं करना है वो, इट इज नॉट अवर पार्ट ऑफ दैट स्कोप ऑफ वर्क। आप टेंडर डॉक्यूमेंट कोई भी उठा के पढ़ोगे ना किसी का, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा, हमारा भी आ जाएगा आपको टेंडर डॉक्यूमेंट। जैसे अपन जैसे गारमेंट के ट्रेड में है, जब भी अपन कपड़ा खरीदते हैं सैंपल बनाने के बाद अपन हर चीज को इवेल्युएट करके उसका प्राइसिंग डालते हैं, ठीक है, अपने में नॉर्मल साइकिल है 6 महीने के अंदर वो प्रोडक्ट बन के स्टोर तक पहुंच जाता है, लेकिन हर एक जगह पे कहीं ना कहीं बफर कॉस्ट अपन पकड़ के चलते हैं। कभी एम्ब्रॉयडरी वाले ने बढ़ा दिया पैसा, कभी फैब्रिक का कॉस्ट अपना रेयॉन बढ़ गया या यार्न बढ़ गया तो उसका कॉस्ट जंप होता है। सो कोई भी धंधे में कोई भी आदमी अगर अंदर घुसा हुआ है तो ये ऑलवेज कैलकुलेट एवरी रिस्क टू बी coming on the project during the execution on project and till the end of the project. तो आपने जो दूसरा पॉइंट बोला था कॉर्पस, जो अभी बिल्डर से हम लोग अभी जो आपने बताया इन्फ्लेशन, वो बिल्डर के हाथ में चला गया, अपने हाथ में नहीं है, दैट इज क्लियर। दूसरा है कॉर्पस, अगर बिल्डर कॉर्पस दे देवे थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस में उधर उतना रिलीफ हो जाएगा, दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द टेंडर लाइन। एक लाइन आइटम आएगी कॉर्पस कौन ऑफर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सो दैट विल बी कंपेयर्ड, जैसे हमने आपको बोला कमर्शियल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, तो ये सब चीज है, जीडीपी, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, ये सब उनको कवर करना है। हमारा मेंटेनेंस क्या आएगा वो आइडिया Too early to say. Yes. जो भी है सर जो आए नहीं 10 गुना तो ठीक है, बट आएगा जो भी आएगा आएगा। आप आई थिंक डॉक्टर नोस। देखो निखिल भाई तो रहते हैं ऑलरेडी उस टाइप के कॉम्प्लेक्स में, सो ही नोज बेटर देन। बस एकदम बराबर है सर। आप अभी काफी मेंबर के अपने यहाँ पे अभी भी करंट फ्लैट है और दे आर स्टेइंग इन अ बेटर सोसाइटी, तो उनको आज मालूम है कि यहाँ पे समझो एक्स है, वहाँ पे डेफिनेटली वाई है या एक्स प्लस प्लस है। सबको एक्सपीरियंस है अगर जी सर बैठे। हाँ मालूम आएगा। लेकिन सर आपकी जो बिल्डिंग है जो मैंने देखी हुई है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो साइज की वो बिल्डिंग है, जो एमिनिटीज है, प्लॉट साइज, उसके हिसाब से तो अपनी बिल्डिंग मिनिमम 3 टाइम्स बेटर बन सकती है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द प्लॉट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट? तो नेचुरली आपकी एमिनिटीज बढ़ेगी, आपके वर्किंग एरियाज बढ़ेंगे, उसमें फैसिलिटीज बढ़ेगी, तो डेफिनेटली उससे तो महंगा आने ही वाला है। नहीं पर देखो सर साइज पे भी डिपेंड करता है। आपके पास समझो 300 फुट का हॉल है, अगर यहाँ पे 1000 फुट का हॉल बनता है तो बहुत फर्क पड़ता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। Can we come to the agenda? Anybody? हाँ please sir. ए माइक देना बेटा। Last we'll take last 2 questions and then again we'll pass the resolution. We'll come back to Q&A क्योंकि आगे एक resolution लेके बाद में लास्ट में Q&A। हाँ बता दो। ए फाइल देना मैडम, फाइल दीजिए। तो my point बटन दबा सर, दबा के टेंडर वाला
दो फाइलें ना निखिल है पुनः हाँ नहीं ये हाँ ये वाला ये जो आपके पास पड़ा है ना शायद गेला गेला ये रहा मैडम इधर है। गेला का हाँ बोलो आई विल रिपीट द क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स जैसे हम I1 कंस्ट्रक्शन या व्हाटएवर बेस्ट अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए आई थिंक 1 ईयर सफिशिएंट फॉर द एंटायर सिविल वर्क सो what is the question you all have given 4 years timeline हम चाहते हैं या प्लीज कंप्लीट so 1 year is sufficient for civil work so where are the 3 years being spent because the more it is delayed सर आई थिंक यू आर रॉन्ग इन 1 ईयर आप समझिए जो प्लिंथ का एरिया होता है ना प्लिंथ इट इज ऑलमोस्ट मिनिमम जो साइज का प्लिंथ अपना है ना 6 to 9 months तो खाली प्लिंथ कंप्लीट करने में जाता है बाद में है ना ऊपर का खोखा फटाफट बनता है आप ऊपर के आ रहे हो नीचे जो फाउंडेशन जो मेन बनेगा फाउंडेशन है ना सर और वो तो सबसे स्ट्रांग चाहिए डेफिनेटली विरल भाई अपने को उस पे हेल्प विरल करेंगे भाई अच्छा विरल भाई का जो प्रोसेस है मैं बिफोर फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ जो मतलब बिफोर Piling. प्लिंथ के Piling. फाइलिंग और वो करीबन 1.5-2 महीना खा जाता है 3 महीना खा जाता है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द प्लॉट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लॉट कितना पाइलिंग शोर पाइलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे तो करेक्ट सो खाली करने के बाद तोड़ने का भी टाइम लगेगा तोड़ने के बाद डिगिंग का टाइम लगेगा पाइलिंग फाउंडेशन फिर आप स्लैब पे उसके बाद 12 महीना what I mean is like some builders they will just kill time to get the right price for their portion सर अभी वो सिनारियो है ना सर गया आज के वो। तारीख में पॉसिबल नहीं है बिकॉज जब तक रेंट का तलवार आप पे बंद नहीं होता है ना सर आप कितना भी भाव बढ़ा लो आपको कोई फायदा नहीं होता वो एक समय था कि भाव बहुत ज्यादा बढ़ते थे टाइम टू टाइम फटाफट बढ़ते ही जाते थे अभी वो समय चले गया सर और दूसरा रेरा का गाइडलाइंस में Regulator. उसने अगर डिले किया तो उसको वहां से भी बंबू आता है तो मतलब हर बाजू से उसका कॉस्ट बढ़ता है प्लस लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन करके एक टैक्स है LUC वो आपको जब तक आप ओसी नहीं लेते हो आपके सर पे वो चालू रहता है जो उसको ही भरना है जब से तोड़ेगा वहां से कंप्लीट तक वो भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट है तो देर आर सो मेनी थिंग्स नाउ चेंज किसी को भी एक दिन का डिले भी मैं एज अ बिल्डर बोलता हूँ एक दिन का भी डिले है ना इट इज किलर फॉर माई प्रॉफिट रेरा रेगुलेटर आने के बाद सीन हैज चेंज पूरा ट्रांसपेरेंटली बीएमसी की वेबसाइट पे कंप्लीशन डेट के साथ सब टाइमलाइन रखा जाएगा बीएमसी की वेबसाइट को बीएमसी को देना पड़ता है तो अभी पहले जैसा डिफॉल्ट और पहले जैसे छोटे बिल्डर का काम ही नहीं रहा दूसरा इसमें एक एडिशन बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड बिल्डर्स आप देखोगे आजकल सबर्बन में जाओगे या किधर भी दे पुट अ रिवर्स क्लॉक ऑल्सो हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट एवरी डे आप देखोगे तो एक दिन कम होता है उसमें हाँ लॉट ऑफ ये अपने साउथ बॉम्बे में कम दिख रहा है सबर्बन में आप जाओ एवरी रेप्यूटेड बिल्डर वो लगा रहा है क्लॉक मतलब पहले दिन वो फिक्स करता है कि भाई 36 महीना तो नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करके 1000 प्लस दिन उधर डिस्प्ले करता है काम चालू होता है एंड दे ऑलवेज ट्राई टू डिलीवर बिफोर दैट क्लॉक गेट्स टू 0 अनलेस एंड अनटिल कभी लेकिन अगेन यही है टाइटल वगैरह में डिफेक्ट अगर आता है जिसका भी सी लकीली अपने यहाँ तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि डे 1 पे ही अपना क्लियर है बट देर आर सर्टन सोसाइटीज देर आर सर्टन लैंड्स कहीं ना कहीं छोटा मोटा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है वो डिले इज किलर विच इज लकीली नॉट विद अस निखिल हेल्प ना निखिल चालू करूंगे हाँ रेंट सो कितना रेंट का हाँ रेंट अपना जो भी यहाँ पे मार्केट रेट रहेगा नॉर्मली वो कोई भी बिल्डर आएगा वो अपने को ऑफर करेगा अभी उसमें ऐसा है कि भाई मेरे पास समझो छोटा जगह है 500 फुट का है तो मेरे को 500 फुट के हिसाब से मिला अगर मुझे अभी 2 BHK लेना है भाड़े पे तो नेचुरली डिफरेंस मुझे भरना पड़ेगा अभी हमारे केस में मेरे पास 7 फ्लैट है तो मेरे को तो एक ही फ्लैट या 2 फ्लैट ही जितना जगह लगेगा तो मेरा बाकी का पैसा मेरा सेव भी होगा तो ये नॉर्मल जो मार्केट रेट रहेगा अपने यहाँ पे या अभी एग्जिस्टिंग जो अपने यहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी बिल्डिंग में अपने पास काफी फ्लैट्स रेंट पे है तो उसका बेंचमार्क ऑलमोस्ट 100-110 रुपए के आसपास का तो ऑलरेडी है आज भी इफ आई एम मेंटेनन्सचा बोलते तुम्ही ताई मेंटेनन्स हां करेक्ट फरक पडणार डेफिनेटली पडणार हे ऍक्च्युअली ऑलरेडी हे डिस्कस झाला पॉइंट तुम्ही कदाचित स्किप केले आता प्रकाशभाईंनी सांगितलं ना ते. प्रकाशभाईनी तेच सांगितलं
आणि ते पण क्लॅरिटी आहे ना, वी विल ट्राय द डे वी फायनल डेव्हलपर अँड एव्हरीथिंग, वी विल ट्राय अँड इव्हॅल्युएट अ रफ एस्टिमेट फ्रॉम द पीएमसी इटसेल्फ. सो एक बिल्डर आहे ना आपल्याला कॉर्पस पण देऊ शकते. ते कॉर्पस आला ना तर तुमच्या मेंटेनन्स थोडं कमी होईल. राहत भेटेल आपल्याला त्याचं. तर ते जे टेंडर बिल्डरच्या बिल येणार ना, ते एक लाईन आयटम असते कॉर्पस डिपॉझिट. ते सगळ्यांच्या कॉर्पस डिपॉझिट म्हणजे बिल्डर आपल्याला डिपॉझिट देणार. ते 25 कोटी 50 कोटी सगळं असं डिपॉझिट देतात. त्याच्या जे इंटरेस्ट येते ते मेंटेनन्स मध्ये यूज होते. आई थिंक बैंक गारंटी आपला अपने को नहीं, हाँ वो बाद में टेंडर डॉक्यूमेंट में आएगा. नहीं, बट नॉर्मली बीजी कोई नहीं देता है. नॉर्मली सब लोग आज की तारीख में एक ही बोलते हैं कि भाई फुल सीसी लो आप. फुल सीसी लिया ना तो उसका पूरा कपड़ा उतर जाता है, खाली अंडरवेयर बाकी रहता है. एब्सोल्युटली बीजी का टाइम गया. बीजी का टाइम गया अभी. नाम रेरा में था, अभी रेरा में सब बिकॉज प्रीमियम आर सो हैवी सो हैवी सो हैवी. अगर प्रीमियम कोई भर लिया ना तो बिल्डिंग तो वाटर में खड़ा हो जाता है. अच्छा एक हाँ अरे सीसी के बिना कोई भी आगे नहीं जा सकता, कैसे जाएगा. अभी ये पीएमसी वाला. अच्छा, मैं पीएमसी का भी जो ना अपने पास आए हैं वो देता हूं पहले. सबसे पहले आया था अपने पास आर्किटेक्चर एक्सेलेंस. उनका ऑफिस है अपना कोहिनूर में. कोहिनूर का जो ऑफिस टावर है उसमें है, कोहिनूर स्क्वायर. यस, योगेश आरोटे उनका नाम था. उसके बाद दूसरा आया है वन स्टॉप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड. आई थिंक ये टिपनिस वाला है ना, टिपनिस, मिस्टर टिपनिस. ये वडेर साहब ने अपने को रिफर किया था, नाम उन्होंने दिया था. रमेश प्रभु. अच्छा, ये वन स्टॉप उनका है. ओके, सॉरी, वन स्टॉप मिस्टर रमेश प्रभु जो लास्ट टाइम अपन ने बुलाया था, जिनको आई थिंक 2019 में. त्या वीडियो पे टाकलेला आहे प्रकाश जी. हाँ, आज इनफैक्ट हमारे को वो जूना क्लिप मिल गया तो डाल दिया हमने कि भाई थोड़ा सा उस पे से ब्रेन वॉश, अपना जो भी मतलब डाउट्स है वो भी क्लियर हो सकता है. जो टिपनिस की मैं बात कर रहा था, टिपनिस साहब वडेर साहब ने रिफर किया था. उनका है सनाहन टेक. उनका ऑफिस है अग्रवाल नगर, अंबेडकर रोड, माटुंगा. अच्छा, वो इनफैक्ट वही है, माटुंगा वाला ही ऑफिस है उनका. अग्रवाल नगर जो अभी पुल डाउन हुआ है वहां पे ही उनका ऑफिस है. फिर एक पीएमसी है टफकॉन्स निर्माण प्राइवेट लिमिटेड. उनके अंडर में भी काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. उनका ऑफिस है गोरेगांव ईस्ट में. उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ना प्रकाश जी, आधे पीएमसी में टेक्निकली क्वालिफाइड आर्किटेक्ट नहीं होते अंदर. तो जो पीएमसी में टेक्निकल देमसेल्फ आर्किटेक्ट, वो वाटर टाइप टेंडर बनावे, जो टेंडर बनेगा ना उनको बनाना है. तो सबसे बड़ा चीज अगर टेंडर बराबर बना तो बाकी का जो बिडिंग आएगा उसमें सारा प्रोटेक्शन, अपना इंटरेस्ट बराबर प्रोटेक्ट करके कोई भी जो टेंडर बनाएगा, और उसको सपोर्ट करने के लिए लीगल अच्छा टीम होगा ना तो टेंडर लीगली भी स्ट्रांग हो जाता है. सी टेक्निकली आर्किटेक्चरल जो फायदे, जो क्लॉजेज हैं वो पीएमसी डालेगा, लेकिन अपने जो सपोर्ट के लिए, अपने को जो प्रोटेक्शन के लिए जो क्लॉज चाहिए लीगल, दैट कैन बी बैक्ड बाय द गुड लीगल टीम. जैसे अभी इन्होंने बोला कि भाई एक फर्म है तो डेफिनेटली वी विल गो विद 3-4 फर्म्स. फिर जो बेस्ट कोटेशन आएगा और उसमें से इवैल्यूएट करके वी विल गो हेड. और जो लास्ट कोटेशन जो हमने मीटिंग किया लास्ट, और जिसमें हम लोग मोस्ट ऑफ अस वर वेरी वेरी सेटिस्फाइड, इज BNSA स्टूडियोज. इनका शिवरी में ऑफिस है, मेरे ऑफिस के काफी बाजू में है. ये अपने को रिफर किसने किया था? हाँ, माटुंगा में जो हैप्पी होम करके लॉयर रामू ने सबसे पहले उसको रिफर किया. हाँ, इनिशियली मिस्टर रामू ने किया था, क्योंकि रामू इज अ वेरी वेल नोन फर्म इन माटुंगा. उनका ऑफिस फोर्ट में है और बहुत है. अच्छा, इनफैक्ट हम लोग, मैं, कमल भाई और 2-3 जन और भी, रामू के पास प्रवीण भाई भी थे शायद, तो हम लोग गए थे उनके पास कि भाई आप ही एज अ लॉ फर्म आ जाओ. बट ही इज सो टाइड अप, मतलब उसको मिलने के लिए अपने को 1-1 महीना 1.5 महीना लगता है. तो मैं बोला भाई ऐसा काम तो चाहिए नहीं कि जिसमें अपना मतलब बिना कारण का टाइम जावे. ठीक है, 1-2 दिन अपन भी समझते हैं, एवरीबॉडी इज बिजी इन देयर शेड्यूल. उसने खुद ने भी बोला कि भाई मैं ये सब नहीं करता हूँ, मेरे पास तो ऐसे भी कोर्ट मैटर्स वगैरह इतना ज्यादा है, और माटुंगा की काफी सोसाइटीज उनके साथ है. बट वो बोला इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए या वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है. तो ये जो लॉयर और आर्किटेक्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, कौन अपने को
टाइम दे सकता है ज़्यादा। आज आपका कितना भी बड़ा नाम हो, उसके पास टाइम नहीं है और अपने को अपना काम डिले करा जाए, तो इट इज कॉस्टिंग अस एवरीथिंग। आज अपने को जितना रुलाएगा वो अपने ही नुकसान है। इसमें खाली मैं हर्षद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, सिंस यू वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, उनका जो मतलब मिलिंद का जो था, उनका नाम है मिलिंद चंगानी, उस पर थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे तो पीपल विल अंडरस्टैंड। माइक देना निखिल। मिलिंद भाई का बैकग्राउंड ऐसा है, दिस इज सेकंड जनरेशन आर्किटेक्ट, उनकी मदर भी आर्किटेक्ट थी। मिलिंद चंगानी, अच्छा ओके। तो दे डील विद ऑल लार्ज डेवलपर्स। हाँ, ये जनरली एनी जो डेवलपर्स आते कम में ना, आर्किटेक्ट साथ होता। अच्छा बीच में आ जाओ बेटा। हर्षद भाई इधर आ जाइए ना। हर्षद बीच में। अरे थोड़ा वजन कम होगा, आ जाए। अरे सगड़ा ना, हर्षद पुढे ये रे। अरे सब लोग बोल रहे हैं हर्षद इधर आओ। तो हम लोग ये छोटो है मिल रहे हैं just to understand none of us are experts. We are learning at every different stage. हिंदी तो थोड़ा हिंदी में बोल और लाउडली बोल। ये जो PLC का बात कर रहे हैं ना, उनका अप्रोच कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और उसके बाद क्लियर हुआ कि once you appoint these kind of people, ऐसे लोग will arrive at a stage जहाँ हम लोग को absolute clarity रहेगा। जैसे अभी हम लोग खाली बातें कर रहे हैं, PLC का जो काम है वो तो वो बताएंगे कैसे क्या स्टेप पे क्या करने वाले हैं। तो उनका जो अप्रोच था वो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर, इनफैक्ट वेरी नॉलेजेबल। ही वाज वो हम लोग को भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, जैसे सर्टेन थिंग्स वी हैड इन आवर माइंड, ऐसा होता है ऐसा होता है। वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेरी प्रोफेशनल गाय। और आई एम श्योर उनको अगर हम लोग अपॉइंट करते हैं तो आई थिंक we will be at a better stage to understand our project further. They had a large team also. हाँ, उनके पास खुद का ये पीएमसी का तो काम का पूरा एक टीम है, प्लस दे आर डूइंग आर्किटेक्चर वर्क, एंड उनकी वाइफ जो है वो पूरा इंटीरियर का बहुत बड़ा यूनिट है उनका। जो ऑफिस में हम लोग गए थे शिवरी में, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वो 4000 स्क्वायर फीट की ऑफिस है, और जो हिसाब से ऑफिस का एम्बियंस है और जो वर्किंग का सिस्टम था उनका वेरी वेरी प्रोफेशनल था, जैसे अर्शद भाई ने बताया। और हम लोग इतने लोगों को मिले, लेकिन कभी भी हम लोग सब लोग एक सेकंड में या एक मत पे नहीं आए थे कि भाई नहीं ये आदमी सही है, अपने को इसको सोचना चाहिए। लकीली इनको मिलने के बाद जो प्रोफेशनल अप्रोच था, अच्छा फीस भी उन्होंने बोला कि भाई मैं फर्स्ट स्टेज का काम का यहाँ से लेके यहाँ तक 25 लाख रुपया लूंगा। तो नॉर्मल केस में अपन बनी है, तो अपन ने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि सर ये ठीक है आप बोल रहे हो, लेकिन आप कितना बार्गेन करोगे इसमें, किस हिसाब से होगा। बोला सर हमारा फिक्स सिस्टम है, अगर 4000 स्क्वायर मीटर से नीचे प्लॉट है तो वी चार्ज 15 लाख रुपीज, अगर 4000 टू 10,000 स्क्वायर मीटर के बीच में वी चार्ज 25 लाख रुपीज। एंड हमारा ऐसा है कि मैं अभी उस पर भी आता हूँ कि कैसे वो स्टेजेस है। बेसिक एक बार जब ही उनसे अपना MOU या लेटर मतलब उनको देंगे अपॉइंटमेंट, उसके साथ उनका एडवांस है 2.5 लाख रुपीज। जब भी वो फाइनल फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करेंगे अपने को, उसके बाद अपन SGM लेंगे, सबको एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे अगेन 2.5 लाख रुपीज। देन द थर्ड स्टेप इज फाइनलाइजेशन ऑफ टेंडर एंड इश्यू ऑफ टेंडर एंड बिडिंग, टेंडर फॉर बिडिंग। तो उसके लिए जब भी ये फाइनलाइजेशन ऑफ टेंडर मतलब उसमें उसके पहले समझो एक उन्होंने पूरा ड्राफ्ट बना लिया, अगेन SGM अपने को लेना पड़ेगा जस्ट टू गेट मोर एंड मोर क्लैरिटी। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, हमारे भी जो क्वेश्चन होंगे, पहले हम लोग पढ़ लेंगे मीटिंग लेने से पहले, बट उसके बाद अपन जनरल मीटिंग लेके अगेन उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। वंस दैट स्टेज इज कंप्लीटेड, देन अगेन दैट at that stage we have to post that meeting, we will pay him once that टेंडर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और उन्होंने समझो टेंडर फ्लोट किया, वहां पे उनको 5 लाख रुपया देना है। देन द फोर्थ स्टेज कम इज कंपैरिजन ऑफ बीड एंड कंडक्टिंग मीटिंग्स फॉर इवैल्यूएशन। तो कंपैरिजन ऑफ बीड्स करने के बाद मीटिंग स्टार्ट करने से पहले अपने को एक बार मीटिंग लेना पड़ेगा, भले वो मीटिंग अपन अपने बिल्डिंग में भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब भी इवैल्यूएशन होगा अगेन उसके बाद करेंगे ना। जो कोई कंपैरेटिव बिड है ना, ये कही दो कंडक्टिंग मीटिंग फॉर इवैल्यूएशन कहां से आते हैं उन्हीं डेवलपर। अच्छा सॉरी, एक कमल भाई बोल रहे हैं कि ये जो मीटिंग्स फॉर इवैल्यूएशन है उसमें सोसाइटी
को एसडीएम लेने की जरूरत नहीं है। उसमें जो रीडेवलपमेंट अपनी टीम है और जो एमसी है वो लोग पहले बैठेंगे, उसके बाद जो इवेल्यूशन होके आएगा और अपॉइंटमेंट ऑफ डेवलपर का स्टेज है, उसके पहले मीटिंग लेके जितना राउंड ऑफ अपने को मीटिंग समझो एक बार में नहीं भी होगा तो 2 बार 3 बार भी करना पड़े, वो करके जब भी एकदम ट्रांसपेरेंट सबके दिमाग में बैठ जाओगे भाई हाँ दिस इज द वे फॉरवर्ड, ये अपने को मिलने वाला है, ये है, अभी हम लोग ओके है, नाउ वी आर इन पोजीशन टू साइन द डीए एंड द इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स। सो वो स्टेज पे उनको 5 लाख देना है और फाइनलाइजेशन ऑफ डेवलपर फाइनलाइजेशन ऑफ डीए विद डेवलपर, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डेवलपर अपॉइंटमेंट होने के बाद उनका ड्यूटी वहां पे खत्म होता है और फाइनल पेमेंट वहां पे देना है। ये उनका प्राइमरी ऑफर है, इसमें अमाउंट वाइज ही विल नॉट निगोशिएट, बट मे बी द जो स्टेज उन्होंने दिया है उसमें वी विल ट्राई एंड मेक समथिंग मोर रीजनेबल। थोड़ा सा क्लैरिटी सर्टेन पॉइंट्स पे हमको नहीं है, वो उनसे अभी तक मीटिंग, क्योंकि जब तक हमको आगे का क्लैरिटी एसडीएम से नहीं मिलेगा तो खाली हम लोग मीटिंग कर करके उस पर आगे बढ़ने का कोई इश्यू मतलब नहीं था, तो इसके लिए हमने सोचा कि भाई चलो ये पहले कर लेते हैं। एक उसके बाद ये स्टेज 1 है, उसके बाद स्टेज 2 जब काम चालू होगा तभी हम लोग को वीरल भाई की हेल्प लेके हम लोग को तभी वापस एक पीएमसी अपॉइंट करना पड़ेगा, हु विल एक्ट मोर एज अ सुपरवाइजर फॉर द क्वालिटी ऑफ द वर्क गोइंग। वो तो डेवलपर अपना क्वालिटी करेगा, ब्रांडेड नाम होगा समझो कोई भी, तो अपने को थोड़ा टेंशन कम हो जाता है, बट हमारा भी सुपरविजन अपने को करना पड़ेगा, उसके लिए भी रखना पड़ेगा वापस। दैट विल बी स्टेज 2 जहां वीरल भाई की हमको हेल्प। और वो मतलब मैं तो खुद बोलता हूँ कि अपने को वो अपॉइंट अपना इंडिपेंडेंट करना ही चाहिए। सी बिल्डर कोई भी आउट ऑफ द वे जाके काम आज की तारीख में कर ही नहीं सकता है, कोई वो सीमेंट बचाओ या स्टील बचाओ वाला किस्सा खत्म हो गया, लेकिन स्टेज वाइज जो प्रोग्रेस है, जो क्वालिटी का काम होना चाहिए वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, उसके लिए अपने को इंस्पेक्शन के लिए तो हमने उनसे ये भी पूछा कि अगर सोसाइटी वुड लाइक टू रेंडर योर सर्विस फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन टिल द हैंडओवर, तो वो बोला यस वी विल डू दैट, बट वो टुडे टू डिस्कस दैट और टू गिव एनी कोड डजंट मेक एनी सेंस। जब तक आपका ये स्टेज क्लियर नहीं होता है तब तक कोई मतलब नहीं आगे का। जैसा ये क्लियर होगा वी विल कम बैक टू यू, हम लोग हमारा ऑफर देंगे, अपन बैठ के डिस्कस करेंगे, एंड इफ यू फाइंड अस रीजनेबल एंड फिट तो यू कैन कंटिन्यू विद अस। हाँ, यू हैव अ क्वेश्चन। दबा के रखना वो। PMC is the most heart of the entire project. जो पूरा monitor कर रहा है, as you said, right from the feasibility report till the end we get from the developer in different stages. So we are breaking it in 2 parts. Yeah. So I got that, but I think that is the most important part of the entire project. Absolutely. The list of the best होना चाहिए जो Yes. PMC है with, as you said, जैसा team होगा उनका lawyer, architect, engineer as well as नहीं, एक खाली बोलता हूँ उसमें No compromise. कि हमने उसको पूछा भी, नॉर्मल पीएमसी है ना आजकल जो छोटे लेवल के पीएमसी है ना, वो क्या बोला, हाँ हमारे पास लॉयर भी है, सब है, आप सब देंगे हम लोग, बराबर है, चार्ज भी उसका कम है, बहुत कम है। इसने डे हमने जैसा पूछा उसको ना, उसने बहुत क्लियर बोला, बॉस दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी, यू अपॉइंट अ गुड लॉ फर्म व्हिच विल गाइड यू नॉट ओनली इन दी लीगल थिंग्स बट यू आल्सो अपॉइंट अ गुड चार्टर्ड फर्म जो आपको कंप्लीट टैक्सेशन पे भी डे 1 पे क्लैरिटी दे सके। तो अपना अप्रोच आई थिंक सही है, जिस तरह से आप जा रहे हो, हाँ। लेट द बेस्ट पीएमसी, आई थिंक यू शुड नॉट उसमें कॉम्प्रोमाइज करना नहीं करना। अच्छा, बहुत कोई कॉस्ट में भी ऐसा नहीं है कि इनका मतलब 25 है तो दूसरा कोई 5 लाख में कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। सी कोई ना कोई 15 लाख 20 लाख तक तो ऐसे भी जा रहा है ये स्टेज पे, तो देन व्हाई शुड नॉट वी गो फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अभी एक पॉइंट निकला था, आप लोग रमेश प्रभु जी, आप डॉक्टर आप पहले आए तो आप रमेश प्रभु की बात हुआ 2019, अभी रमेश प्रभु से हम लोग 5 साल से 6 साल से काम कर रहे हैं समझो, तो वी रियलाइज रमेश प्रभु इज अ ब्रांड फॉर मल्होत्रा हाउस सोसाइटी रिलेटेड लीगल मैटर्स। उसने क्या किया, बिकॉज ऑफ हिज ब्रांड इक्विटी एंड ब्रांड नेम, ही हैज स्टार्टेड अपॉइंटिंग आउटसोर्सिंग CAs, आउटसोर्सिंग आर्किटेक्ट्स, आउटसोर्सिंग लॉयर्स आल्सो, एंड सब खोल दिया है। बट उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनका मोट है सोसाइटी मैटर्स, लीगल मैटर्स, मल्होत्रा हाउस एंड 79A मेनली वो उधर खत्म होता है, तो उनकी जगह पे नीचे जाने का उनकी वो स्पेशलिटी नहीं है, तो यू हैव टू हैव स्पेशलाइज। आप बहुत लोग ऑफर करेंगे, देयर आर CA फर्म्स जो दूसरे लॉयर को रख के बोलेंगे अभी CA लीगल बहुत दे रहे हैं, बट यू गेट द बेस्ट लॉयर, बेस्ट। आपका जो फर्म है, सॉरी मैं बीच में, आपका जो फर्म है वो चार्टर्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है या प्योरली लॉ फर्म है? वही पार्टनरशिप हो जाए। सो सम सिमिलर, अभी जो हमको नाम दिया उन्होंने, इनफैक्ट ये पीएमसी ने, उसमें से एक लॉ फर्म का नाम दिया जो समीर संघवी चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
उनका भी कंपनी का नाम शायद समीर संघवी नसर नहीं, वो लॉ फर्म जो उनका है, उनका एक कुछ अलग नाम है, लॉ समथिंग। छठी तो अभी तो ऐसा उनका है, सेम फ्लोर पे बीकेसी में उनका ऑफिस है, एंड आई एम एसोसिएटेड विद हिम सिंस लास्ट 15-20 years फॉर माय सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स। इवन हिरेन भाई नोज हिम वेरी वेल। उनका ऑलरेडी लॉ फर्म का पूरा डिवीजन ही अलग है और डे वन से है, मतलब ये ऐसा नहीं कि खाली पीएमसी शुरू कर रहे थे या टू पार्टनर्स संघवी एंड शेट्टी हाँ। एंड शेट्टी। और जो तो हम लोग जो भी लॉयर बिल्डर के पास जाते थे, सॉरी बिल्डर के अपने लॉयर लॉ फर्म के पास जाते थे, उनको पूछते थे हुआ द बेस्ट आर्किटेक्ट, हुआ द बेस्ट सीए, सबसे 5-5 नाम लिए, 25 लोगों का बैंक बन गया, सबका प्रोज एंड कॉन्स ट्रैक रिकॉर्ड पूछते थे, कहाँ उनका प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, कौन टाइम दिया कौन नहीं दिया। जैसे उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं, जहाँ पे फोन करके पूछा तो मालूम पड़ा रामू के पास टाइम ही नहीं है। रामू खुद का अभी बेस्ट लॉयर रामू है, फॉर एग्जाम्पल रामू खुद का बिल्डिंग, मेरा कजिन रहता है हसमुख जी बिल्डिंग, खुद का बिल्डिंग 4 साल से कर नहीं पाया खुद का, क्योंकि टाइम ही नहीं है। खुद का बिल्डिंग जहाँ खुद रहता था, अभी तो वो इज मूव टू अ बिगर अपार्टमेंट, बट तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होता है। जैसे वो मिला हम लोग उसको कट मार दिया। और दूसरा इसमें ये भी है कि नॉट नेसेसरीली वी विल अपॉइंट वन फर्म फॉर बोथ द थिंग्स। अगर अपने को ऐसा लगता है कि भाई ये लो फर्म अगर अच्छा है और ये सीए फर्म ज्यादा अच्छा है, तो वी विल गो फॉर इंडिपेंडेंट आल्सो। तो ये मतलब अपने को सबसे ये क्लैरिटी चाहिए और परमिशन चाहिए कि भाई अपन अगर मिल गया अगर अच्छा कॉम्बिनेशन, वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड गो फॉर दैट कॉम्बिनेशन। इफ नॉट देन वी विल गो सेपरेट। टू मेक अ बेटर प्रोडक्ट वी नीड टू हैव अ गुड प्रोफेशनल, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट वी आर ट्राइंग टू गेट। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द टीम, देन वी विल गेट द बेस्ट प्रोडक्ट। चलो तो वी कैन पास अ रेजोल्यूशन ऑन दिस। हाँ भाई, और किसी को कुछ नहीं होगा तो फिर हाँ फिर पीएमसी का, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। उसका कहना क्लियर था, सर आप जितना स्पीड में भागोगे उससे डबल स्पीड में मैं भागूंगा। रेगुलर कोर्स में अगर टाइम टू टाइम जैसा आपने को सोच रहे हैं, अगर प्रॉपर प्रोसेस किया तो विद इन 6 months वी विल बी ऑन द स्टेज टू फ्लोट द टेंडर्स। मैं आपको एक चीज विरल भाई, यू विल बी अमेज्ड, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को फोन किया था, पीएमसी आर्किटेक्ट सबको। ये एक ही आर्किटेक्ट था जिसने हम लोग से हर रोज उसका 2-2 आदमी लोग का रोज उन लोग का मीटिंग होता था। पहले 2 डिटेल मंगाया, फिर 4 डिटेल मंगाया, तीसरे दिन 6 डिटेल मंगाया, 8 डिटेल, यानी कम से कम 24 डॉक्यूमेंट हम लोगों ने उसको सबमिट किए। उसके बाद इवैल्यूएट करके बोला नहीं ठीक है मैं काम हाथ में ले सकता हूँ, यानी ही इवैल्यूएटेड वेदर ही शुड टेक द वर्क इन आवर। बाकी सबको तो सर कोटेशन लो, हाँ बस 40,000 नक्की किया, 50,000 नक्की किया, पैसे दे दो। कितना आप बोलो आपके भाव में काम करने को तैयार है, वो लोग आते जैसे लोग, ये एक ही बोला मेरा भाव है ये करना है तो करो। अच्छा, दूसरा बहुत क्लियरली उसने बोला कि वी डोंट गिव फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, खाली मांगेंगे आप बोलेंगे 50,000 में कर दो, 1 लाख में कर दो, वी डोंट वर्क इन दैट वे। अगर हम लोग काम लेते हैं तो पूरा पैकेज ही लेते हैं और पूरा पैकेज ही डिलीवर करते हैं, मतलब वेरी प्रोफेशनल। हम लोग को सबको एक नजर में वो जजने का सबसे बड़ा कारण ये था द वे उसका अप्रोच, जो टीम का उसके साथ मतलब पूरा सेटअप है और काम। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, मोस्ट ऑफ द बिग बिल्डर्स इज एसोसिएटेड विद, क्योंकि उनका जो काम है आर्किटेक्चर का, तो ऑलरेडी उसके अंडर में अराउंड 60 to 65 सोसाइटीज ही इज ऑलरेडी हैंडलिंग फॉर द पीएमसी। तो हमको फायदा कहाँ हुआ, 2019 में जब हम रमेश प्रभु जी के साथ ये प्रोसेस चालू किया था, तभी आमरे जी हेड एल्डर्स लॉ, तभी हम लोगों ने काफी डॉक्यूमेंट्स, हमारा पूरा अपने ड्राइंग, अपना क्या सॉफ्टवेयर क्या विरल है आपका, ऑटो पूरा लेआउट अपना ऑटोकैड पे आमरे जी ने बनवा के दिया था अपने को। तभी हम लोगों ने इतना पूरी फाइल बना के रखी थी। तो फॉर्चुनेटली वी हैड एवरीथिंग रेडी, एरिया वाइज, प्रॉपर्टी का, पीएमसी का स्टेटस, प्लान, लेआउट, सब हमने फाइल बना के रखी थी। और फिर अपनी गाड़ी कोविड आ गया और आगे नहीं बढ़ी। नहीं, कोविड एक तो सॉरी एक कोविड आ गया, दूसरा पॉलिसी जो प्रभु जी ने बताई थी वो अनफॉर्चुनेटली बीजेपी और इसका भंगान हुआ, उसमें लटक गई, तो अपन लटक गए, 3-4 साल निकल गए। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो जो फाइल बनाई थी, एक ही आर्किटेक्ट, ये जो था मिलिंद चांगानी, एक ही था, उसमें से उस पेपर में से जो आमरे जी ने हमको बनवाया था स्टार्ट टू फिनिश, सारे डॉक्यूमेंट हमसे मांगे, किसी ने नहीं मांगे और सबने कोड दे दिया हमको। तो नाउ वी आर वंडरिंग, वो लोगों ने ऐसे ही काम ले लिया, बोले दे दिया, भाई हमको लो अंदर, ऐसा सब लोग, कोई परसेंटेज पे किधर कोई कुछ भी अनाप शनाप बात कर रहा था। अनिल भाई वो रिकलेक्ट, कहाँ गए अनिल भाई? अनिल भाई, हाँ, वो फाइल हमने जो बनाई थी, सारे एक एक डॉक्यूमेंट आपको याद होगा हमने दिया। एंड मैं रियली थैंकफुल रहूंगा जो रीडेवलपमेंट कमेटी हमने अपॉइंट किया था 1-2 साल पहले की एजीएम में, नहीं 2019 का एजीएम में, दे हैव बीन रियली वेरी वेरी एक्टिव करंटली लास्ट मे बी कपल ऑफ वीक्स और 3 weeks कंटिन्यूसली। जब भी ये दिमाग में बैठे
उसके बाद हम लोग सुपर एक्टिव हुए। नहीं तो मेरे को कभी भी कोई भी मिलता था, मैं बोला प्रोसेस चालू है। डॉक्टर साहब मांगीलाल जी मिलते थे, अरे केतन शुद्ध है। आई वॉज ऑलवेज सेइंग कि भाई देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि अपने को जब तक कॉन्फिडेंट ही नहीं आवे तब तक अपन आगे बढ़ने का कोई सेंस ही नहीं था। लकीली ये जब भी हमको सबको दिमाग में बैठा ना, देन वी रियली स्टार्टेड एक्टिंग फास्ट कि भाई चलो अभी तो करना है। अनिल भाई और दक्षा मैडम ने हमको बहुत धक्का मारा है, पुश किया। हाँ। हाईएस्ट अनिल भाई मतलब कंटिन्यूअसली हर काम, इवन लास्ट 4 दिन में जो सोसाइटी के रिलेटेड काम था, आज की तैयारी थी, हॉल की तैयारी थी, अनिल भाई, कीर्ति भाई, राजू भाई, सब लोग लगे पड़े थे। सबने इंडिविजुअली काम डिवाइड किया था, लेकिन एवरीबडी मेड श्योर कि जो उनको काम दिया गया था या उन्होंने जवाबदारी ली थी, एवरीबडी डिलीवर्ड राइट ऑन टाइम एंड एवरीथिंग इज डन। सो आई एम थैंकफुल टू द होल टीम के मेरा बहुत कम अंदर आना था, लेकिन फिर भी काम प्रॉपरली जो हमने सोचा था और जो एग्जीक्यूट करना था आज हो सके। दूसरा एक चेंज हमने खाने का कोई भी विषय तो कीर्ति में हाँ, खाने का कुछ अगर नहीं भी अच्छा लगा तो गाली उनको देना, हमने नहीं किया फाइनल। अच्छा, सेकेंडली जो बाकी का काम भी था आज के लिए भी और पहले के लिए भी, तो सबसे पहला जो 4 दिन पहले हम लोग ने सोचा कि भी एवरी नाइट वी विल मीट फॉर नेक्स्ट 4 days टिल दी एसजीएम। कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे, कभी कुछ रह जाता है, कभी कुछ रह जाता है, कभी किसका क्वेश्चन आ रहा है तो वी विल रिप्लाई। वी मेड श्योर दैट एवरी मेंबर हैज बीन कॉल्ड और मैसेज्ड एंड गॉट कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड वेदर ही कैन कम और नॉट, दैट इज अ सेपरेट थिंग। आज उस वजह से आज लकीली 18-20 लोग आज गूगल मीट पे भी अपने पास आए जो अब्रॉड में है या नहीं आ पा रहे हैं। आज जैसे वडेर जी का अचानक जो प्रॉब्लम आया, लेकिन स्टिल टुडे ही इज कनेक्टेड विद अस। उन्होंने ये बोला था कि कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है जो मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ या ऐसा है तो आई विल बी वेरी मच रेडी टू डू दैट। मैं भले बिजी हूँ वहाँ पे मेरे कोई काम से, बट आई विल मेक श्योर दैट आई विल आंसर द क्वेश्चन। एक हम्बल रिक्वेस्ट सब मेंबर्स को, हम लोग को ये सारे प्रोसेस में एंड तक वी हैव टू बी यूनाइटेड एंड कलेक्टिवली टुगेदर। आज क्या होता है, हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है इधर, कोई टाइपो मिस्टेक रह जाती है, अपने पास कोई टीम मैन पावर आगे पीछे जाता है, छोड़ के जाता है, आता है। अभी आज भी नोटिस में टाइपो मिस्टेक रह गई है, तो दीज आर स्पिरिट ऑफ कंप्लायंस। देखिए टाइपो और ये सब में कलेक्टिवली हेल्प करें किधर कुछ। लेकिन कमल भाई मैं उसके लिए खास अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। वो हम लोग को हमेशा चाबुक मार मार के जगाते रहते हैं एंड ही मेक श्योर एवरीथिंग इज डन ऑन द टाइम एंड प्रॉपरली। मतलब सी ऐसा है कि अभी अनफॉर्चुनेटली आज मेरे ख्याल से समीर भाई नहीं है। समीर भाई लास्ट 2-3 मीटिंग जब भी हुई है एसडीएम में कभी भी नहीं आए, लेकिन वो व्हाट्सएप पे ऑलवेज एक्टिव है, मतलब चाबुक मारते ही रहता है। तो हम लोग को भी डर रहता है, अरे साला ये कुछ डालेगा वापस समीर, अपने को भागना पड़ेगा। सो इट इज गुड। सी कोई भी मेंबर है ना सर, नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर वो राइट अप्रोच से काम करता है इट इज बेनिफिट फॉर द होल सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं किसी का व्यू अगर अपने से भी समझो, कभी ना कभी ऐसा है कि मैं कोई भी चीज 100% कोई भगवान ने भी अपने को वो नहीं दिया कि सब संपूर्ण हो, कहीं ना कहीं छोटा मोटा रह जाता है। तो एटलीस्ट लोग जागरूक, अगर अपने में भी 5-7 लोग भी जागरूक है तो ऑलवेज इट इज अ गुड थिंग। एंड मैं उसको हमेशा पॉजिटिव मानता हूँ कि ऐसे लोग की वजह से अपन भी जागरूक रहते हैं और आगे अपन जो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं वो हमेशा प्रॉपरली स्टेप टू स्टेप और प्रॉपर रिकॉर्ड्स वगैरह का भी काम प्रॉपर करके ही जाए। जैसे निखिल भाई ने भी आज 2-3 पॉइंट बोला, अभी हिरेन भाई, जो भी है रिकमेंडेशन पॉजिटिवली सजेस्टिव होना चाहिए ताकि साथ में हम लोग आगे जा रहे हैं। एक सजेशन है, आप लोग बोल रहे हो हाँ। चाबुक मारते सबसे अच्छी बात है, लेकिन आप ब्लाइंडली साइन मत करो। फॉर एग्जांपल एजीएम के अंदर आपको जो आपका ये है रिपोर्ट क्या बोलते हैं उनको, वो घाटकोपर का रिपोर्ट आपको दादर में देता है और आप साइन करते हो। सर पर वो बहुत बड़ी गलती है। सर मैं मानता हूँ ना, मैंने तो पहले इसके लिए आपका नाम ले लिया। मैं बोला वो बाद में मारेंगे, इससे पहले माफी मांग लेना अच्छा है। बना के देते हैं वो, उसमें भी आप सब साइन करते हो तो उसमें भी आप पढ़ के साइन करो। तो एक बार सजेशन सर इसके लिए नहीं सर, सजेशन नहीं, मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा सर। आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या, गाड़ी उसका लिफ्ट में खड़ा रह के साइन देता है सर, हमेशा ऐसा ही होता है, गाड़ी में बैठते बैठते पकड़ और बोलते हैं साइन करो, क्योंकि लेट होता है, हमेशा पेपर लेट होता है, अपना टाइम पे होता नहीं है। आपको एक छोटा बात बताता हूँ, अभी हमने उस दिन नोटिस व्हाट्सएप पे डाली, समर को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई करेक्शन करना, एजीएम लिखा था तो एजीएम करके आपको सबको बांटना है। समर भाई ने गारे का राय लिया तो गारे बेचारा बोलता है अरे एवढे पैसे कशाला घालवायचे। आप समझो, उसने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। 3 दिन के बाद जब हम लोग मिलना शुरू किया तो हमारे में से किसी ने बोला कि यार मेरे को, मनीष ने और दिलीप भाई ने बोला अरे नोटिस तो अभी तक मिला नहीं। मैं बोला है ये क्या हो गया, अपन ने तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया था। फिर जाके मालूम पड़ा कि भाई नोटिस गया ही नहीं है। इसके लिए फिर
दूसरे दिन सुबह उसको इंस्ट्रक्शन दिया, पूरा दिन उसने काम करके भेजा। सो ये कैसा है? हाँ नहीं सर, मेरे को नंबर नोटिस बोर्ड पे और व्हाट्सएप पे भेज दिया था, बट सर मैं जेन्युइनली जो मिस्टेक या जो लैप्सेस होते हैं, अभी सिस्टम के भी लैप्स, अभी मेरा समर को बोलना, समर का गारे को पूछना, और उसने अपना उसने बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए भाई एवढे पैसे कशाला घालवायचे, पण क्या होता है कहीं ना कहीं मैं उसको भी समझाया कि अभी जो काम करने जा रहे हैं अपन, इसमें अपने को पैसे की कॉस्ट नहीं देखनी है, अपने को वी हैव टू मेक श्योर दैट वी फॉलो ईच एंड एवरी रूल रिक्वायर्ड एज पर रेरा, एज पर माडा, जो भी है। सो थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट हो रहा है, अपने जो समर आपने अपॉइंट किया है, एक नो कॉम्पिटेंट पर्सन। सर एसडीएम में वो बात नहीं करें ना, अपन पर्सनली बैठ के बात करें सर प्लीज। क्या है वो सेपरेट इश्यू है, अगर उसको बोलना भी है या उसको चाबुक मारनी है तो अपन मिलके बात करें। अच्छा रेजोल्यूशन पास कर। हाँ सो एग्जैक्ट क्या ड्राफ्ट करवाना वो भी सो द फर्स्ट जो अपना एजेंडा था जिसपे काफी फर्स्ट और सेकंड ऑलमोस्ट साथ में ही हो गया। सो अपन आज रिजोल्यूशन पास कर दे कि वी गिव द पावर्स टू द मैनेजिंग कमेटी टू गो अहेड विद द अप्रूवल एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द पीएमसी, लॉ फर्म एंड द टैक्सेशन फर्म। यही दो एजेंडा मतलब मेन है। तो आई होप एवरीबडी अपने को यूनानिमसली होवे ऐसा अपन करे आज। टैक्सेशन फर्म वालों का भी अलग पैसा लगेगा। हाँ ऑफ कोर्स दिलीप भाई, ये देखो सीए और अनपढ़ लोगों में यही फर्क होता है। वो बोलते हैं भाई सबको ये भी बता दे कि लॉ फर्म का अभी तक पैसा इसमें नहीं है, वो अलग लगेगा। सीए का अगर नक्की करें तो इट इज बाय नेचुरल भी है कि भाई जो भी एजेंसी को अपन रखेंगे टाइम टू टाइम कोटेशन लेंगे, एंड अगेन जो भी नक्की करेंगे हम लोग वो ग्रुप पे भी डालेंगे, जरूरत पड़ा तो सर्कुलेट भी कर देंगे। और जस्ट फॉर एवरीबॉडीज इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट कलेक्टिंग एनी मनी फॉर दिस। हमारे पास कॉर्पस में पैसा है अपना, उसी में से यूज होगा, ये अपने कॉर्पस में से यूज होगा, वो भी हम लोग। इनफैक्ट अपन इस पे अभी टैक्स भर रहे हैं, तो वो अपने को अभी कोई पैसा कलेक्ट भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, उसमें से आगे जाएंगे। और जैसे भी मतलब अपने को जैसे इनका अभी यादव जी का आया है कि भाई वो खुद एक लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई भी, देखो पीएमसी के लिए अभी हम लोग ज्यादा इस पे आगे रिसर्च करना नहीं चाहते, लेकिन सीए फर्म और जो अपना लॉ फर्म है, इसमें कोई भी कॉम्बिनेशंस अगर किसी के भी पास है तो हो सके तो नेक्स्ट कपल ऑफ डेज 3 डेज में आप लोग प्लीज हमको कमेटी को पर्सनल पे या कोई ग्रुप पे डाल दीजिए। वी विल मेक श्योर दैट वी हैव अ जॉइंट मीटिंग विद देम। ग्रुप पे नहीं ग्रुप मतलब अपने पर्सनल ग्रुप पे, तो अपन एमसी पे डाल देंगे। और उस हिसाब से अपन फिर वो भी कैसा है, उन्होंने भी बहुत क्लियरली बोला कि जिस दिन आप हमारा अपॉइंटमेंट करोगे और हम ये प्रोसेस शुरू करेंगे, यू मेक श्योर कि उसके नेक्स्ट 10 दिन के अंदर आप इवन लॉ फर्म तो एटलीस्ट फाइनल हो जाए। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर आपका कोई क्लोज है या जो अपने को गाइड प्रॉपर कर सकता है, प्रॉपर अपने को हेल्प कर सकता है, प्लीज लेट अस नो। तो शुड वी कंसीडर दिस रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास? हाँ बिफोर वी फॉरगेट, खाने पीकर जाना मत, कोई भी 15 मिनट में पैसा पूरा लग गया है तो वसूल करके जाना, सबको रिक्वेस्ट है। खाना रेडी। हाँ आज ने अपन ने ऑलरेडी गूगल मीट पे ये पूरा मीटिंग रिकॉर्ड किया है, और ये तो अभी अपना 79 का प्रोसेस का मीटिंग नहीं है हिरेन भाई, ये अपना 79A के प्रोसेस का मीटिंग नहीं है, जैसा अग्रवाल जी ने बताया था, वो मैं जस्ट क्लैरिटी दे रहा हूँ। नहीं 100% अपनी सेफ्टी के लिए। और हिरेन बोल रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। नहीं यस मैं वही बोल रहा हूँ कि आगे का जो भी मीटिंग का स्टेप्स होगा, वी विल मेक श्योर दैट वी डू इट रिकॉर्ड ऑल्सो। और इसका दूसरा भी एक है, आज ये गूगल मीट पे किया है, शायद हम लोग हमारे काफी प्रोग्राम जो करते हैं समाज के वगैरह, वो हम लोग आजकल यूट्यूब पे लाइव करते हैं। सो उसमें आप बोल नहीं सकते हो, लेकिन प्रॉपरली आप देख सकते हो क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, यू कैन डू इट। सो वी विल ट्राई एंड डू दैट ऑल्सो, एंड आई होप कि ये हॉल भी अपने लिए सबके लिए कंफर्टेबल है। तो क्या होता है इसी सोसाइटी में, लोकल कॉम्प्लेक्स में मीटिंग करने में और यहाँ पे एक माहौल का बहुत बड़ा फर्क है सर। तो सर्टन चीज आज अगर ये स्केल का अपन काम करने जा रहे हैं और फिर ये अपन लाख रुपया 2 लाख रुपया देखते रहेंगे, तो कभी भी अपन इतना बड़ा गोल अचीव लाइफ में नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू थिंक इन अ पॉजिटिव वे, और जरूरी नहीं है अपन 10 मीटिंग करेंगे तो उसमें 10 की 10 यहाँ करेंगे, लेकिन जो सर्टन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है आफ्टर एवरी स्टेज, that we will make sure we try and get the right date on similar Sunday morning or Sunday evening and at this place. I hope everybody agrees. Yes sir, please. Since we are already recording the meetings and all, हाँ. and if it is possible, can we circulate it also so that we Not this one, the next one. जैसे भी नहीं सर, रिकॉर्ड मैं वही बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे जो जाएगी मीटिंग ना
सर वो परमानेंट रहता है यूट्यूब पे, आप कभी भी देखो, 1 साल में देखो, 2 साल में देखो। सर आपको मैं आपको आंसर दूं। एक अपनी वेबसाइट बनाएंगे प्रियदर्शनी महिला chs.in, उसमें सारी रिकॉर्डिंग उधर अपलोड करके। कमल भाई, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट का काम शुरू हो गया है, विद इन 15 डेज वो लाइव हो जाएगा। तो 2019 में भी हमने वेबसाइट बनाई थी जहाँ रमेश प्रभु का सारा डाला था, और फिर जब कोविड आया और अपना जो ये एक्टिव पास नहीं हुआ, वो पोर्टल ही डेड हो गया अपना, क्योंकि बहुत लंबा निकल गया। तभी अनिल भाई ने सारा मेहनत किया हुआ था, तो अभी वापस वही चालू है। हमारा सिर्फ एक ही प्रयत्न है कि मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग आगे बढ़े और मैक्सिमम लोगों का सपोर्ट के साथ आगे बढ़े। दैट इज अवर कोर क्राइटेरिया आल्सो एंड कोर इंटरेस्ट आल्सो। आई थिंक अभी आज का एजेंडा सारा खत्म हो गया है। लास्ट 2-3 क्वेश्चन है, लेने तो ले सकते, नहीं तो वी कैन ओपन फॉर डिबेट। किसी को खाना चालू आहे ताई, तुम्हाला खायचं आहे तर तुम्ही घ्या। जेवण सुरू आम्ही गारे 2-4 मिनिट आम्ही गपशप करते, तुम्हाला घ्यायचं तर घ्या। हो गया ना? Anybody is getting late, then please take the dinner is open. अगेन मैं जो अपना रिजोल्यूशन है यूनानिमसली सबने ओके किया है, मैं वापस उसको रिकन्फर्म कर रहा हूं। अपन ये तीनों चीज का अपॉइंटमेंट का रिजोल्यूशन यूनानिमसली पास कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए सर। सर देखो बिल्डर आएगा ना, कहीं ना कहीं वो अभी बहुत सारी सोसाइटी में, मैं बोलता हूँ, आप अच्छा क्वेश्चन है वो भी। अगेन वो लोग है ना, प्राइमरी नाम है ना, बहुत बार रिटेन करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को कुछ अलग ब्रांडिंग देते हैं। तो आप देखेंगे, उसका रीजन बताता हूँ। आजकल उनको भी माल बेचना है, 10,000 रुपया 5,000 रुपया उनको ज्यादा कमाना है, तो नाम भी ऐसे रखते कि एक तो उनका ब्रांड आता है कि रहेजा विवेरिया, तो वो नाम बदली हो गई ना, बदली होना ही है, डिपेंड्स। लेकिन अपन ऐसा करेंगे ना, उसको बोलेंगे भले ऊपर तूने लिखा रहेजा विवेरिया, नीचे लिखना PHMS को 62 भवानी शंकर रोड ब्ला 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 ब्ला। सी कैसा है, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, अपन कोशिश करेंगे। सर्टेन थिंग्स कैसा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऑलवेज अगर पॉसिबल हुआ तो वी विल डेफिनेटली डू इट, क्यों नहीं। अभी जैसे पादियावाड़ी बनाया विकास भाई ने, तो उधर अभी क्रिसेंट वे बन गया, तो अभी सॉरी क्रिसेंट वे तो उधर है, हमारे उधर। अच्छा, प्रपोज्ड बाय और सेकेंडेड बाय, मेरे को 2 नाम लगेंगे। हिरेन संघवी प्रपोज बाय विरल भाई, सेकेंडेड बाय, पहले में और सेकंड में इंदर भाई आपका नाम डालता हूँ, प्रपोज बाय और विनोद भाई, सेकेंडेड बाय विनोद भाई। अग्रवाल जी और कुछ बाकी होगा तो बोल दीजिए, नहीं तो बाद में आप पकड़ोगे कोई ये बाकी रह गया किधर। वो अग्रवाल जी डबल थंब। नेक्स्ट मीटिंग में सब लोग रहेंगे, जब भी हम लोग टेंडर अपने जो टेंडर वाला जो आएगा तभी मिलेंगे। जो भी टीम की जरूरत रहेगी ना, वी विल मेक श्योर दैट दे आर प्रेजेंट इन दैट, और वैसे ही लोगों को काम देंगे जो अपने को पूरा टाइम दे सके। सर ऐसा नहीं है बड़ी ब्रांड के साथ जाके वो फिर टाइम ही नहीं देवे, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। तो जो टेक्निकल इवैल्यूएशन का कंपैरेटिव जब प्रेजेंटेशन होगा वो आर्किटेक्ट देगा, देखो हम लोग नहीं देंगे, वी आर नॉट क्वालिफाइड। एक मिनट, नाम वापस रिपीट कर। हिरेन भाई नंबर 1 का, हिरेन संघवी, फ्लैट नंबर, हिरेन भाई फ्लैट नंबर बोलो। फ्लैट नंबर बाद में करेंगे। ये 402 हिरेन भाई। ए 402 में कहाँ रहता तू? बराबर हाँ, है, बराबर एक अरे ही भाई उसके नाम पे तो है ना, बाकी सब अलग नाम पे। नाम पे ही नहीं है बाकी। और सेकेंडेड बाय B202 विरल भाई मेहता। चलो सॉरी पटेल, सॉरी नहीं मैंने अच्छे हमारा एक मित्र से विरल मेहता, सॉरी। सेकंड इंदर भाई और फौजी, इंदर भाई भाटिया, कैम्ब्रिज। शॉप नंबर अपना सर 1314 1415, शॉप 1450। और विनोद जैन, तेरा रा में क्या फ्लैट नंबर है? इधर का B1002 B1002। सॉरी इंदर भाई आपका शॉप इंडिविजुअल नाम है, कंपनी के नाम पे? सॉरी आपका नहीं ले सकता, आई नीड अनदर प्रपोजल, सॉरी। हाँ ठीक है, हाँ अपना जयेश भाई वीरा, शॉप नंबर कर में है पांचो 5, शॉप नंबर 5 जयेश भाई, ठीक है। टेक्निकल बेटर अभी से परफेक्ट जावे अपन। B10। अच्छा, मैं खाली रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी जो रीडेवलपमेंट कमेटी है वो सब आगे आवे, सब लोग आपके चेहरे देखे, और किसी को भी अगर रीडेवलपमेंट कमेटी में ज्वाइन होना है प्लीज लेट अस नो। 4 लोग एक बिल्डिंग से अपन ले रहे हैं, अरे अगर मतलब जगह रहेगा तो अपन वो अकोमोड कर लेंगे, या आपकी कुछ स्पेशलिटी है, अगर वो पॉइंट के लिए जब भी मीटिंग होगी हम लोग स्पेशली आपको वो मीटिंग के लिए भी बुला लेंगे। और शुरू रिक्वेस्ट करता हूँ कि श्याम जी भाई किधर गए? श्याम जी भाई वो बोलते हैं कि शाम का मीटिंग मत रखो। अभी क्या होता है कि लोग आते हैं सब लोग घर पे, हाँ शॉपिंग से 2 रखते हैं, ऑल्टरनेटिवली एटलीस्ट एक जन तो पहुंचेगा,
तो विपिन भाई का ये आपका नाम लिखता हूँ, विपिन भाई, ओके। और दिलेश भाई कभी कभी आप भी, अच्छा इनफैक्ट दिलेश भाई की सिस्टर भी, शी इज अ वेरी गुड क्रिमिनल लॉयर। भगवान करे अपने को क्रिमिनल लॉयर की जरूरत नहीं पड़े, जिग्ना डेडिया। तो अपने पास, लेकिन लकीली आई एम सेइंग कि अपने पास काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, काफी डॉक्टर्स और काफी एडवोकेट्स भी कनेक्टेड है अपनी सोसाइटी। अभी इधर 40-50 साल वाले एक्सपीरियंस वाले अपने दो बैठे हैं बाजू में, तो हम लोग के फाउंडेशन See, इतना होने के बाद भी कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई आई विल डू दिस, बिकॉज दे डू नॉट स्पेशलाइज समवेयर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। लेकिन इनके भी बहुत सारे कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये बोलेंगे कि भाई ये फर्म ये काम बहुत स्पेशलाइज कर रही है, वी विल गो विद देम आल्सो। फॉर एग्जांपल प्रदीप कपासी जैसे हैं, इनके बहुत अच्छे मेरे ख्याल से कलीग थे और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, हिरेन भाई के सीनियर हैं। तो वैसे कोई पर्टिकुलर लोगों में से हम लोग कोई ना कोई चूज करेंगे। हाँ, ये प्लीज है रीडेवलपमेंट कमेटी, आगे आ जाओ। हर्षद, मनीष, हर्षद भाई, मनीष भाई, अरे आगे आओ ना। जनक भाई, विरल भाई, आमरे जी आए नहीं अभी। आज आमरे जी, अनिल भाई कब से पहले आओ भाई। अनिल भाई तो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, हमारे से भी ज्यादा इनफैक्ट। हम लोग में से यहाँ से 4 लोग हैं। केतन भाई वीडियो ओपन करो ना। सब हाँ, अरे सब लोग आएंगे सब। ये बांध के रखेंगे निखिल, अपन किसी को भागने नहीं देंगे। तो भी गोरेगांव से अरे केतन भाई वीडियो ओपन करो ना। स्क्रीन ओपन है। थैंक्स नाउ। या थैंक यू। वी रियली अप्रिशिएट कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। टाइम टू टाइम नॉर्मल आधा घंटा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अपना पहले अजन करके सब टाइम पे आ गए, और बहुत अच्छी तरह से पूरी मीटिंग कंडक्ट भी हुई और रिस्पॉन्ड भी हुई। आई होप सबका क्लैरिटी काफी इनिशियल स्टेज का हो गया है, और सबको प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ खाना खाने बिना नहीं जाना। तो आप सबका मैं खूब शुक्रगुजार हूँ, और पूरी रीडेवलपमेंट कमेटी का भी। एक लास्ट डिटेल 86। हाँ, अरे भाई फूड, जैन फूड भी है अवेलेबल, तो वो ते सांगायचं नाही हो। काय नाही तो बोला, मी कुठे बोललो? साहेब बोल। ठीक है, एनीवे, सो जैन फूड का भी अरेंजमेंट है। खाली जैन का भी साइड में अरेंजमेंट है साइड में। चलो, अरे एक लास्ट। और सर एक बात मैं खाली ये कंफर्म करना चाहता हूँ, आज अपन ने स्पेशल केस में मेंबर के साथ उनके कोई भी फैमिली मेंबर को अलाउ किया, या फैमिली मेंबर नहीं है जिसका, तो कोई ना कोई उनका फैमिली का जो भी गाइडेंस देने वाला या है, अगर आप सब परमिट करेंगे तो मेरी अच्छी इच्छा है कि भाई अपन जब भी दे विल नॉट बी एबल टू वोट, बट दे विल बी ऑलवेज हेल्पिंग देयर सीनियर्स और द फैमिली मेंबर्स। तो अगर आप सब चाहें तो वी विल कंटिन्यू। स्पेशली प्रकाश जी को हाँ बोलनी है। और वो हिसाब से क्या निखिल भी आएगा हमेशा, नहीं तो निखिल भाग जाएगा। आई नो, इसीलिए नहीं सर, देखो बायलॉज एक बात है, लेकिन अगर साइन आप नहीं लेते हो, हाँ, और काफी चीजें कैसे होती है अग्रवाल जी, काफी चीजें ना प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। और क्या है, देखो सीनियर्स को बहुत सारे लोगों को नहीं समझता है, तो उनके बच्चे अगर वो चीज में है, स्पेशलाइज करते हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड just for record 102 members have come, 102 members have come, फ्लैट और शॉप ओनर्स मिलके। अरे मेरा तो साइन बाकी है अभी, तो एक और बढ़ा दे। मेरा 4 फ्लैट का तो बाकी है। अल्पा ने किया होगा 2 फ्लैट में शायद, तो 2 बाकी। काउंट हो गया। मेरा प्रतीक का बाकी है ना। प्रतीक आया है, प्रतीक है, पार्टी अपना हाजिर है सब। सो बहुत अच्छी, प्लस ये अलग ना, और ऑनलाइन अलग है। So almost 120 plus members were present today. ये अपना बट फादर सन 8 लोग हैं, निकाल दो तुम विकास डॉक्टर। भाई का कितना फ्लैट है? हाँ, विकास भाई का ही वो बैंक है पूरा, प्रवीण भाई का पूरा बैंक है, मेरे 4 और सब गूगल मीट पे जितने भी हमारे मेंबर्स ने आज पार्टिसिपेट किया, हमको शांति से सुना, उसके बदले खूब खूब धन्यवाद। खास करके इनको बोलना जरूरी है, सब लोग दूर दूर से अपने को सुन रहे हैं। मुझे 4 है, 1 मिनट। अरे हाँ, ये कमल भाई का 4 है, उन्होंने भी साइन नहीं किया। हाँ, अरे मेहरबानी नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है सर, अपना ही पैसा है सर। सर अपने पैसे से ही खाना है, किसी का मेहरबानी नहीं, कोई मेहरबानी नहीं। अपना खुद का हाथ जगन्नाथ ऐसा है इसमें। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओ इंदर भाई, ओ इंदर सर भाई। प्लीज सब लोग खाना खा रहे बिना नहीं जाना, पूरा पैसा लग गया है 100 जन का, तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग खाना खा के जाना। कैसे?
अरे आपको देखा मैंने तो बहुत अच्छा हॅलो लगा. अरे मैंने खास फोन करके बोला हूँ. कोणा वडिलांना काही तरी बसून खालायचं ते घेऊन हा, घ्या. कारण- वडिलांना बघून घे जरा. अरे भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन. हाँ बेटा ये गूगल में क्या हुआ क्या करें? सॉरी तेरा एक मिनट यार माइक दे भाई. नाव काय? रिफ्लेक्ट बनाया बाजू का लिया चेन्ना. 2000 स्क्वायर फीट है. ओके सॉरी गाइस, मैं 2 जन का शुक्रिया अदा करना भूल गया. एक तो अपने जो कैटरर्स डेकोरेटर है मयूर कैटरर्स, खास करके उनका भी खूब खूब धन्यवाद. जो ब्राह्मण सेवा मंडल का पूरा ट्रस्ट है उसका खूब धन्यवाद. और आज का जो अपन ने ऑनलाइन का जो कार्यक्रम किया और आगे वेबसाइट वगैरह का जो करने जा रहे हैं, वो जिनको जॉब दिया है उनमें से गौरी अपने पास आज आई. उसने पूरा गूगल मीट का हैंडल किया, वाईफाई का हैंडल किया. उसके बदले खास धन्यवाद उनका भी मैं बोलना चाहता हूँ. आई मिस्ड इट, आई एम वेरी सॉरी. थैंक यू. मैं खुश हो गया. बराबर है. अभी क्या होता है, कोई चीज प्रॉपरली सीरियसली जब तक हाथ में नहीं आता पर्टिकुलर मैं नहीं चाहता.